This video is going to be one of the masterclass vis-a-vis UPSC mains preparation. In this video, I'm going to touch upon many themes, many threads. I'm going to unpack all those layers, which if you are able to unpack it, then nobody is going to stop you from scoring one of the highest marks in UPSC mains, especially the GS 1 to 4 paper. So if you want to clear UPSC mains by a significant margin, like you have to score 50 plus marks above the cutoff, be it general or be it any category cutoff, in a bid to secure a rank in the final list. If you are somehow stuck at the boundary or at the cutoff area, then you are not going to see your name in the final list. So to secure a rank in the final list, to secure a service in the civil services examination, the one thing which is indispensable, and that is sine qua non for getting a rank, is to score 450 plus in GS 1 to 4 paper. That is the only thing which is the most predictable, most rewarding, as well as most fair part of the entire UPSC civil services preparation. So in this video I am trying to make it all encompassing, where I am going to touch all such key insights which will help you score 450 plus in GS 1 to 4 paper. So all guys, be ready, take a pen, take a paper, and then you are going to note down everything that you are going to find it useful. Like I am going to make it very open. I am not going to stick to one area. It can have great lessons for note taking as well as how to write answer, as well as how to frame answers. And by the end of it, I am going to demonstrate it with a question. I am going to take that question, and while taking that question, I am going to formulate answers in real time in front of you, so that you know how to brainstorm about a topic. You will get to know how to formulate an answers. You will get to know what are the don't do kind of thing, like what are the do's and don't of answer writing, as well as what are the things that you should avoid, as well as you are going to know what are the things that you need to take note of. आपकी नोट मेकिंग जो होगी वो कैसी होगी, what are the things that you need to like bring it in your notes. So एक क्वेश्चन के थ्रू मैं एक बहुत ही prominent topic, and that topic is going to be asked in ethics, that topic is going to be asked in GS3. That topic has relevance for a full-fledged essay in essay part also, like a full-fledged essay can come on that topic. So I'm going to teach you in this video how to brainstorm, how to write points, how to create points, and in your note making you will also know going forward, whenever you read a certain topic, what are the things to write down about the note making and what are the key areas. So I'm going to make this video all encompassing. You have to revisit this video again and again. This is going to be one of the most important video that you will ever come across in UPSC mains preparation. So pay very close attention. So let's start. I'm going to have a lot of fun bringing it to you, and hope you also have a great time going through it. So the most important thing for UPSC mains is there is a ladder, okay, there is a pyramid, okay, like that pyramid is called GS marks enrichment, okay, pyramid. So the first part that is the level 1 that I tell, that level 1 जो होगा ये वो level 1 है आपका, कि आप पहले जो 20 क्वेश्चन है पेपर में उसको तो आप कंप्लीट करोगे ही करोगे. दैट इज़ द लेवल 1. ये आपको करना ही होगा. ये जो चीज़ है 20 क्वेश्चन आपको पर पेपर होंगे. जीएस के 250 मार्क्स के जीएस के पेपर होंगे, वो इंटू 4 पेपर होंगे, मतलब 1000 मार्क्स हो गया आपका. ये आपको 20 क्वेश्चन कंपलसरी है आपको फिल करने होंगे. 50 पेजेस होंगे और 20 क्वेश्चन होंगे पर जीएस पेपर, ठीक है. इसको आपको करना ही होगा. और थोड़ा GS4 में वेरिएशन होगा आई थिंक. उसमें केस स्टडी जो होते हैं 20 मार्कर इंटू 6 जो होते हैं वो आई थिंक 4 पेजेस होते हैं एक केस स्टडी के, तो उसके आप पेज काउंट कर लेना उसके हिसाब से, ठीक है. सो राउंड अबाउट रफली उतना होता है. सो आपको 20 क्वेश्चन तो फिल करने ही करने हैं. सो डैट इज़ द फर्स्ट लेवल. ये अगर लेवल पर आप आ गए तो समझ जाओ आपके मार्क्स इतने के आसपास आएंगे, 370 400 अराउंड समथिंग लाइक दैट. सो पहला टारगेट आपका क्या होना चाहिए? आपका पहला टारगेट होना चाहिए कि 20 क्वेश्चन आप फिनिश करोगे ही करोगे, मतलब लेवल 1 तो आपको क्रॉस करना ही करना है. दैट वे अगर आप ये करते हो तो आई थिंक 90 to 100 आपके मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है ना. दैट इज़ रफली अराउंड इतने के मार्क्स आपको पर पेपर अगर आते हैं 90 to 100, तो आप 4 पेपर GS 1 to 4 मिला करके आपको 370 to 400 आएगा, ठीक है ना. सो ये हो गया पहला स्टेज. यू हैव टू कंप्लीट ऑल 20 क्वेश्चन एंड यू हैव टू फिल ऑल पेजेस ऑफ द पेपर. वो कितना पेज हो जाएगा? 50 पेजेस हो जाएगा पर पेपर. सो ये तो पहला लेवल है. तो आपको ये 4 पिरामिड है, ये 4 लेवल है, ऐसे आपको जाना है, ठीक है ना. और आपका टारगेट यहाँ होना चाहिए. दिस शुड बी योर टारगेट 450, ठीक है ना, प्लस 450 शुड बी योर टारगेट. तो आपको स्टार्ट करना है कि भाई मैं ये तो कर लूँ,
ठीक है ना। ये 20 क्वेश्चन में से कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना, क्योंकि क्वेश्चन जो छूटेगा वो इवेलुएट नहीं होगा। लाइक अगर आप क्वेश्चन छोड़ रहे हो, लाइक इफ़ यू आर स्किपिंग वन क्वेश्चन, देन वो तो एग्जामिनर के मूड पर था कि अगर वो आप 2 नंबर की चीज़ें लिखे होते तो वो शायद 3 नंबर दे देता, या फिर अगर आप 2.5 नंबर के लिखे होते तो वो 4 नंबर दे देता, ठीक है ना। या 3 नंबर के लिखे होते तो 2 नंबर देता, 1 नंबर करता। पर लिखोगे तो ही तो स्कोप रहेगा ना कि आपको कुछ एक्स्ट्रा मिल जाए। अगर ब्लैंक पेजेस पर तो ऐसा नहीं होगा ना, वो 0.5 नंबर प्लस दे देगा ब्लैंक पेजेस में, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। सो आपको ये कंप्लीट करना। और ये जो बात है कि अगर हम कुछ फालतू लिख दिए तो इंप्रेशन ख़राब हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ऐसा कुछ नहीं होता। मतलब आप आगे चल करके आई विल टीच यू दे आर सर्टन फिक्स टेम्पलेट, इफ़ यू डिप्लॉय इट then it can't be falsified. Like if you don't know the exact answer, ठीक है ना, you don't know the truth, if you write something vague or something like middle ground, like this is truth, ठीक है ना, let me tell you this is truth and this is false, you can write in between which you can't falsify it with. Evaluator will not find absurd, he will not find it exactly truth because you don't know it. But if you have that writing skill where you have certain fixed template, with over a period of time I will demonstrate it, like how I don't know a thing about this question, still I will be able to write a very decent answer where the evaluator will going to give me like at least 3 marks out of 10 marks. So if you know the truth, then you get 5, ठीक है ना. But even if you don't know it, still you can get 3 to 4. There is a fixed template how to write it, that over a period of time I will show it with enough number of question, आपको वो प्रैक्टिस हो जाएगा, फिर आपको वो समझ में आ जाएगा कि हाँ मतलब लिख सकते हैं. Then you have the confidence and you will have the tools to implement it for yourself in so many question. अलग अलग सेगमेंट के क्वेश्चन पर अगर मैं वो उसको डेमोन्स्ट्रेट करते हुए दिखा दूँ, then you will have that confidence. तो आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, नहीं आते हुए भी, ठीक है ना. यू हैव टू बी वेरी रोबोटिक, वेरी मैकेनिकल इन योर आंसर्स, सो यू डोंट हैव टू स्किप एनी क्वेश्चन. ऑलवेज रिमेंबर दिस इज़ द सैक्रेड थिंग, दिस इज़ अ थंब रूल. ये आपको पहले कंप्लीट करना है 20 क्वेश्चन. नेक्स्ट मूव करेंगे. नेक्स्ट में क्या है, जितने भी सब पार्ट है, ठीक है ना, एक क्वेश्चन का आई विल डेमोन्स्ट्रेट कि विद इन वन क्वेश्चन, ठीक है ना. जैसे मैंने लास्ट वीडियोज़ में आपको बताया था कि एक क्वेश्चन के अंदर है ना आपको सब हेडिंग ढूंढना होता है, ठीक है ना. लाइक देयर इज़ वन क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को है ना आप एटलीस्ट 3 से 4 भाग में तो आप तोड़ो ही, 3 तो टूटना ही चाहिए. यू हैव टू ब्रेक इट इनटू 3 सब पार्ट एटलीस्ट, और 4 आप जोड़ सकते हो ना आगे. लाइक इफ़ यू आर फाइंडिंग कि कुछ उसमें निगेटिव है तो 4th आप दे सकते हो ना, वे अहेड एक सब पार्ट आप क्रिएट कर सकते हो. दिस इज़ द सब पार्ट दैट यू कैन क्रिएट एंड देन यू कैन लाइक एड्रेस इट. सो यू हैव टू ऑलवेज रिमेंबर कि इन वन क्वेश्चन you have to divide it. At least you have to break one question into 3 part, and 4 part is must, 4 part is compulsory at least for question which is 15 marker. लाइक GS में कुछ क्वेश्चन होंगे ना 15 मार्कर, सो 15 मार्कर को 3 पेज में लिखना होता है, 10 मार्कर को 2 पेज में लिखना होता है. सो ये जो 15 मार्कर हैं उसको तो आपको 4 पार्ट में डिवाइड करना ही करना है, ठीक है ना. सो ये आप हमेशा ध्यान रखना. अभी भी लाइक आई एम सीइंग लॉट ऑफ इवेलुएटिंग लॉट ऑफ आंसर कॉपी एंड आई एम नॉट सीइंग दैट डायमेंशन, दे आर नॉट राइटिंग इन दैट वे. वो आप एग्जामिनर के लिए छोड़ के मत रखो कि दे आर गोइंग टू फिगर आउट फॉर देम सेल्फ कि इसमें डायमेंशन क्या है. डू इट फॉर देम, ठीक है ना. आई टोल्ड यू लव योर एग्जामिनर, मेक हिज लाइफ ईजी, ही विल मेक योर लाइफ ईजी बाय अवॉर्डिंग यू मार्क्स. सो माई पॉइंट इज इन एवरी क्वेश्चन, इन वन क्वेश्चन यू हैव टू डिवाइड इट 3 और 4, ठीक है ना, इन 4 सब क्वेश्चन. उसके है ना 4, 3 या 4 सब पार्ट होने ही चाहिए, दैट इज़ कंपल्सरी. यही बात मैंने ये बोला है यहाँ पर. ऑल सब पार्ट को जब आप डील करोगे तो इट इज़ लाइक 70 to 80 पर पेपर हो जाएगा. क्यों? क्योंकि 3 to 4 है, ठीक है ना. सो 20 into 4 80 और 3 is 60, और वो मैं बोलूँगा 60 के बाद थोड़ा सा वे हेड डाल ही देते हैं. सो आई एम टेकिंग इट लाइक 70 to 80 इफ़ यू आर एबल टू डू इट, ठीक है ना. देन यू हैव रीच्ड द लेवल 2, ठीक है ना. अगर आप ऐसा कर लेते हो सो आप लेवल 2 पर आ गए. देन यू कैन स्कोर 400 to 430. अगर आपने 80 कर लिया, ठीक है ना, एंड दिस इज़ ऑल मैकेनिकल प्रोसेस. If you are able to do it, unlike prelims, unlike interview, like those part जहाँ पर there is no fixed set formula, ठीक है ना. मेंस काफ़ी रिवार्डिंग है, especially this. Every year you will see many people clearing mains year after year because they have cracked the formula, and here is the formula. There is no formula, इसके अलावा कुछ नहीं है. If anybody who has ever cleared, they have gone through this formula also. This formula is tried and tested and is been going on for so many years, ठीक है ना. Even the evaluation happens along this part only, ठीक है ना. How they grade their marks, they grade their marks in this way only. This is the ladder funnel. ये funnel है, ठीक है ना. और यहाँ आकर के है ना, यहाँ तक पहुँचते it becomes very difficult, ठीक है ना. So this is the way I told you in the last video कि in the evaluation system how they go about evaluating people. So इसका output यही है. So every question you have to break it into 3 to 4 sub part. 4 should be the ideal.
3 शुड बी मिनिमम, इट मीन्स 70 to 80 पर पेपर। इस मीन्स एक क्वेश्चन के अंदर आपको 70 से 80 क्वेश्चन एक पेपर में आपको डील करने हैं, ठीक है ना। देन यू हैव रीच टू द लेवल 2, ठीक है। और इससे भी नीचे लेवल आते हैं, ठीक है ना, दैट आई विल नॉट कंसिडर बिकॉज दे आर नॉट गोइंग टू क्लियर मेंस, ठीक है ना। दैट इज़ एज ब्रूटल एज इट गेट्स, ठीक है ना, एज हार्श एज इट गेट्स, बट आई एम टेलिंग यू यू हैव टू रीच टू दिस लेवल, क्योंकि अगर आपको 300 350 आ रहे हैं, ठीक है ना, देन यू आर नॉट गोइंग टू क्लियर इट, ठीक है ना। और मतलब मेंस भी क्लियर हो जाए, दैट इज़ ऑल्सो वेरी, मतलब इट विल बी अ मिरेकल ऑफ सम सॉर्ट्स, ठीक है ना। सो नाउ यहाँ तक आप पहुँच गए, ये पहुँच गए, और आई एम गोइंग टू डेमोन्स्ट्रेट इट कि हाउ यू आर गोइंग टू डू इट विद अ क्वेश्चन, द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट आई एम गोइंग टू टेक, वहाँ पर मैं डेमोन्स्ट्रेट करूँगा कि हाउ यू आर गोइंग टू डू इट, ठीक है ना। ये आप कैसे यहाँ तक पहुँचोगे और व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट, आपके लिए बेंचमार्क क्या है, आई एम गोइंग टू डेमोन्स्ट्रेट इट विद अ रियल क्वेश्चन, ठीक है। अब जब 70 to 80 सब क्वेश्चन आप डील कर लिए, फिर वो सब पर आपको पॉइंट जनरेट करना पड़ता है, देयर इज़ अ पॉइंट जनरेशन। मतलब एक कोई ये क्वेश्चन है, ठीक है ना, पहले तो मैं आपको जस्ट कंसेप्चुअल लेवल बता देता हूँ। एक क्वेश्चन है, उसको तो आप पहले है ना ब्रेक करोगे 3 से 4 सब पार्ट में, ठीक है ना। दैट इज़ 1, दैट इज़ 2, दैट इज़ 3, 4। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। अब इसके अंदर लिखोगे आप 5 पॉइंट, ठीक है ना, मिनिमम 4 होने चाहिए और कोशिश करो 5 करने का। इसके अंदर लिखोगे 5 पॉइंट, ठीक है ना, फिर इसके अंदर लिखोगे 5 पॉइंट, ठीक है ना। दिस इज़ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। सो 70 to 80 तो आपके सब क्वेश्चन हो गए, सब पार्ट हो गए, सबके अगर 5 पॉइंट लिखोगे 350 आएगा। मतलब मैं एक मीन वैल्यू ले लिया हूँ, क्योंकि किसी में आप 4 पॉइंट भी लिखोगे, अगर 80 लेते हो, 4 सब हेडिंग लिखते हो, 4 अगर सब हेडिंग लिखते हो तो आप किसी में 4 पॉइंट ले सकते हो या 3 भी पॉइंट ले सकते हो, लेकिन अगर 3 हेडिंग ले रहे हो तो 5 तो कंपलसरी है। सो आई एम टेकिंग अ मीन वैल्यू। सो 350 पॉइंट आपके आने चाहिए, ठीक है ना। पॉइंट का मतलब क्या हो गया? पॉइंट का मतलब ये नहीं हो गया कि पूरा पैराग्राफ लिखने लग गया, ठीक है ना। पॉइंट का मतलब हो गया आप है ना, जस्ट कोई भी चीज़, वो भी मैं डेमोन्स्ट्रेट करूँगा क्या पॉइंट का मतलब मैं बोलना चाह रहा हूँ। वो जस्ट 1 वर्ड, 2 वर्ड, 3 वर्ड नहीं होता, 1 लाइनर या एट मैक्स ये जो आपके स्पेस होता है ऐसे बुकलेट में, उसमें 1 पॉइंट लिखे आप, 1 दे दो, ए दे दो, ऐसे करके, तो वो एक पूरा लाइन ज़्यादा ज़्यादा यहाँ, ठीक है ना। ऐसा 2 लाइन बहुत हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए 3 लाइन 4 लाइन ऐसे हो गया, तो फिर वो दैट इज़ नॉट हाउ यू राइट जीएस आंसर्स, ठीक है ना, वो ऑप्शन में लिखते हैं। सो ये हो गया 350। अगर यहाँ आप कर लिए, इट इज़ टफ ना, इट इज़ टफ, that's why you are going to secure a service, ठीक है ना। it is tough, nobody, if it is easy then everybody would have been scoring it, but that is the only way to go about it, that is the evaluation pyramid of the UPSC, you have to be mindful of it. It is tough but you have to go through this route only, ठीक है ना। so अगर आप ये कर पाते हो then you are on this level 3 and that is a great score 450। जस्ट मैं आपको इसको बता देता हूँ, जस्ट 450 अगर आप ला रहे हो, ठीक है ना, उसके बाद आपको मैं 250 ही बोल रहा हूँ इस ऑप्शन बनाने के लिए, दैट इज़ वेरी एवरेज मार्क्स। लोग 300 330 क्या क्या लाते हैं, 250 इज़ वेरी एवरेज। कितना हो गया? 700 हो गया यहीं से। अब 700 में अगर आप 110 120, मतलब मान लो कि आप 800 110 ले लो इससे का, सब में मैं ना बहुत ईजी ले रहा हूँ, ठीक है ना, मतलब किसी में एक्सेप्शनल मार्क्स नहीं ले रहा हूँ। 810 हो गया आपके। इंटरव्यू में 160 ले लो, बहुत कम ले रहे हो, ठीक है ना, ऐसा भी नहीं एक्सेप्शनल 190 या 200 ले रहा हूँ। 160 कितना हो गया? 970 हो गए। यू आर गोइंग टू क्लियर इट। 970 में आपको रैंक मिलेगी किसी भी कैटेगरी में, ठीक है ना, बहुत अच्छी रैंक भी मिल सकती है, ठीक है। सो दिस इज़ द ब्लूप्रिंट। इसके बाद आप इंटरव्यू भी आपका ख़राब गया, एवरेज गया 160, ठीक है ना, अच्छे मार्क्स नहीं है 160, इट इज़ एवरेज मार्क्स, ठीक है ना। 170 175 होना चाहिए। 110 भी मतलब ठीक है ना, इस ओके मार्क्स इन एस से। 250 इज़ ऑल्सो अ वेरी ओके मार्क्स इन ऑप्शनल। सो आप देखोगे ऑप्शनल, इससे इंटरव्यू सब में आने के बाद भी आपका सिलेक्शन हो रहा है। कैन यू इमेजिन कि मतलब 970 लाइक 943 और 947 और 950 राउंड अबाउट यही कट ऑफ जा रहा है, ठीक है ना। दैट इज़ फॉर जनरल। आई थिंक ओबीसी इज़ 910, लाइक दिस इज़ 60 मार्क्स मोर देन ओबीसी कट ऑफ। सो आई एम टेलिंग यू कि 450 लाइक ब्रिंगिंग 450 इज़ टफ, बट थिंक अबाउट कि अगर आप ये ले आते हो, ठीक है ना, वाई 450 इज़ टफ बट इज़ द मोस्ट प्रिडिक्टेबल, क्योंकि इसका एक सेट पैटर्न है। लाइक इससे हो सकता है यू जस्ट गॉट द टॉपिक रॉन्ग, आप कुछ नहीं कर सकते, हो सकता है आपके नंबर कम आ जाए, ठीक है ना। सो उसमें अगर आप टारगेट करोगे 140 लाना है, लाइक ऑन अ वेरी बैड डे आपका हो सकता है गड़बड़, ठीक है ना। उसी तरह से इंटरव्यू, दे आर पीपल who can score good marks in interview, they have potential of scoring 200, but on a bad day and there are certain variable they can end up 160, ठीक है ना। सिमिलरली ऑप्शनल भी प्रिडिक्टेबल है, किया जा सकता है, लेकिन स्टिल इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ हार्ड वर्क, ठीक है ना, प्लस स्केलिंग, ये सब हो सकता है। सो माई पॉइंट इज, even if you score 450 here, if the hard work, because I told you the most proportional or most rewarding the part in the entire UPSC preparation is GS 1 to 4, इसमें अगर आप 450 ले आते हो, like it will
आइसोलेट यू, इट विल इंसुलेट यू फ्रॉम आर्बिट्रेरीनेस और वेगनेस इन एवरीथिंग। सब में एवरेज ला करके भी आप 970 टारगेट कर सकते हो। सो दैट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस एंड मेनी पीपल हु क्लियर इट एंड दे कीप अपेयरिंग फॉर यूपीएससी ओनली टू गेट इन टू द IAS एंड ऑल, ठीक है ना। दे डू इट बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रेटेजी ऑल्सो। आपने देखा होगा ना किसी किसी के मतलब उनके 3 बार 4 बार फाइनल सिलेक्शन हुए, ठीक है ना। दे स्कोर 400 रैंक, 400, 300, 190s में रहते हैं। एवरीबडी डज इट ऑन द बैंक ऑफ दिस ओनली, ये वाला वही GS 1 to 4, ठीक है ना। सो दिस इज़ द टॉप मोस्ट सीक्रेट और सो कॉल्ड वट एवर इट इज़, ठीक है ना। यही है, दिस इज़ द ओनली टूल दैट इज़ गोइंग टू लाइक सेल योर बोट इन UPSC क्वेश्चन, ठीक है ना। सो इसको आपको मैंने जस्ट नंबर्स के थ्रू डेमोन्स्ट्रेट किया है, ठीक है ना। सो यही एक थोड़ा प्रिडिक्टेबल है एज़ कम्पेयर टू रेस्ट एवरीथिंग, इट गिव्स यू द क्वेश्चन, सो अंडरस्टैंड दैट थिंग। सो अभी हम 450 तक आ गए, थर्ड लेवल तक आ गए। क्या करना है, एक एक क्वेश्चन, पहले तो सब क्वेश्चन लिखना है। एक क्वेश्चन के अंदर 3 से 4 सब पार्ट होगा, उसको डील करना है, ठीक है ना। अब हर जो सब पार्ट डील आ गया उस पर आपको है ना 4 से 5 पॉइंट लिखना है। तो हम यहाँ तक आ गए पॉइंट्स, ठीक है ना। अब हमको थोड़ा सा और एक्सेल करना है, ठीक है ना। वी हैव टू सिक्योर द बेस्ट सर्विस। यहाँ तक अगर आ गए यू विल सिक्योर अ सर्विस, दैट्स फॉर श्योर। अब इसके आगे आपको मतलब एक डिज़ायर्ड सर्विस भी मिल जाए, ठीक है ना, विदाउट हैव टू एक्सेप्शनली डिपेंडेंट ऑन समथिंग एल्स। जैसे वहाँ पर क्या देखा था 970 आए थे, अगर 450 से 480 ले गए विच विल बी द टॉप स्कोर इन द UPSC मेंस। सो उससे क्या हो जाएगा, आपको डिज़ायर मतलब 100,000 प्लस जा सकता है, ठीक है ना। देन यू कैन गेट अ डिज़ायर्ड सर्विस, ठीक है ना। थोड़ा सा और हेल्प हो गया कहीं भी 10-20 नंबर का। सो आई थिंक इफ़ यू स्कोर देयर देन यू कैन गेट अ डिज़ायर सर्विस इररिस्पेक्टिव ऑफ द मार्क्स, बस बाकी में एवरेज रहे, ठीक है ना। उसमें क्या करना रहता है, वैल्यू एडिशन करना रहता है। वैल्यू एडिशन कैसे होगा, उसमें जब आपने 350 पॉइंट जो लिखे हैं ना हर पर, उसमें आप कोशिश करो कि अगर 70 सब पार्ट है, जैसे एक एक क्वेश्चन के अंदर जो आप 3-4 सब पार्ट डाल रहे हो, ठीक है ना, जो मैंने बोला हर सब पार्ट के अंदर है ना, जब पॉइंट लिख रहे हो उसको थोड़ा सब्सटेंशिएट करो। वो भी मैं दिखाऊंगा कि कैसे आप एक जगह एक पॉइंट लिखे हो, एक पॉइंट तो मैंडेटरी है कि 4-5 पॉइंट लिखना, उसको है ना थोड़ा एग्जाम्पल के साथ कुछ सब्सटेंशिएट कर दो, कुछ डेटा के साथ कर दो, थोड़ा सा ना केस स्टडी के साथ कर दो, थोड़ा सा ना रिपोर्ट के साथ कर दो, कोई कमेटी का रिकमेंडेशन के साथ कर दो, कोई इंटरनेशनल कोई रिपोर्ट होगा उसके साथ कर दो, ठीक है ना। तो ये एक सब्सटेंशिएशन हो गया, ठीक है ना। ये हो गया वैल्यू एडिशन, थोड़ा सा ना ज़्यादा वैल्यू डाल दिए, सो दैट इज़ कॉल्ड वैल्यू एडिशन। सो ये जो वैल्यू एडिशन अगर आपने कर दिया, अगर आप एक एक पार्ट के अंदर अगर 2-3 वैल्यू एडिशन कर दिए, ठीक है ना, मतलब आप 4-5 जो आप सब पार्ट कर रहे हो उस हर पार्ट में अगर 2-2 वैल्यू एडिशन कर दिए, ठीक है ना। अगर पॉइंट लिख रहे हो 5 पॉइंट तो कम से कम 2-3 पॉइंट में ना एक अच्छे से वैल्यू एडिशन कर दिए। और अगर ये कर दिए हर क्वेश्चन में, ठीक है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक क्वेश्चन में आपने है ना मतलब 5-6 कर दिया, ऐसा नहीं होगा ना। 10 में आपको 9 आउट ऑफ 10 दे देगा किसी क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो वो भी मैं बता चुका हूँ कि आपको 7 बहुत हो गया, ठीक है ना, 6.5 से ज़्यादा नहीं आएगा, ठीक है ना। सो ये 120 ऐसा नहीं है कि बस 5 सवाल में ही 120 सारा एग्जाम्पल भर दिया, नहीं, हर में 2-2 डालो, ठीक है ना। 20 क्वेश्चन है ना, उसमें 120 बोल रहा है ना, मतलब इंटू 6, हर क्वेश्श्चन में 6 ऐसा डालो, यानी कि सब हेडिंग में 2-2 डाला करो, कम से कम 3 हेडिंग में 2-2 तो वैल्यू एडिशन करोगे। अगर आप ये कर देते हो यू विल गेट 480 श्योर, यही टारगेट है। अगर ये 480 आ गया यू हैव ए ह्यूज शॉट एट सर्विस, गेटिंग अ डिज़ायर सर्विस। नाउ यू अंडरस्टैंड स्टिक्स क्या है, ठीक है ना। सो ये इंटायर ये जो पेज है इसको आप है ना दिमाग में एकदम छाप लो, ठीक है ना। यू हैव टू टारगेट दिस इज़ द समिट ऑफ योर UPSC मेंस। अगर इफ़ यू आर एबल टू स्केल दिस एवरेस्ट देन नोबडी इज़ गोइंग टू स्टॉप यू, ठीक है ना। ये रहा, यही है सबसे ज़्यादा प्रेडिक्टेबल इन द एंटायर UPSC। आपको प्रीलिम्स आपने देख लिया, केओस, मेंस अभी देख रहे हो, इंटरव्यू देख लिया, उस केओस के बीच में यही है कामनेस, यही है सबसे ज़्यादा प्रेडिक्टेबल और यही है मोस्ट प्रोफेशनल टू योर एफर्ट। इसको लाने में जो आप एफर्ट डालोगे, ठीक है ना, वही होगा। और ये कैसे एफर्ट होगा, थ्रू आंसर राइटिंग, थ्रू टेस्ट सीरीज। मैं अभी देख रहा हूँ बहुत लोगों का, आई थिंक अभी उनका यहाँ तक ही नहीं है, ठीक है ना, ये यहीं तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, वो लेवल 1 तक ही नहीं, उनका 3 घंटा हो जा रहा है, पेपर कंप्लीट नहीं हो रहा है। आई बीन सीइंग एंड दैट इज़ द मोस्ट। तो उनको अभी ये करना है। अब जो मेंस दे रहे हैं 2025 में, ठीक है ना, डैट आई नो लॉट ऑफ पीपल जो कि इनरोल किए हैं वो दे रहे हैं। आई विश कि वो यहाँ तक जितना जल्दी पहुँच जाए 15 दिन में, ठीक है ना, देन आई कैन मेक देम क्लाइम टू दिस। तो एटलीस्ट लेवल 3 तक तो चल ही जाए, ठीक है ना, ऐसे करके। सो बट दोज पीपल हु आर राइटिंग 2026 फॉर देम नॉट क्लियरिंग प्रीलिम्स इज़ अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, इट इज़ अ बून। क्योंकि यहाँ से ना ये लेवल 1 से 4 पहुँचने में बहुत मेहनत लगता है, ठीक है ना, इट टेक्स लॉट ऑफ एफर्ट। वो आपको अभी ही टाइम है, लाइक नेक्स्ट 2-3 मंथ्स, 4 महीने ले लो आप, ठीक है ना, 4 मंथ्स, ट्राई टू क्लाइम। पहले तो 1 महीने में ये करो, 1 महीने में ये करो, 1 महीने में ये, मतलब
यहाँ तक आने में जितना मेहनत लगेगा आपको थोड़ा थोड़ा अप करने में ना मुश्किल लगेगा, और इसके लिए ना आपके नोट्स बहुत रिफाइंड होने चाहिए, ठीक है ना। ये जो पॉइंट जनरेशन होते हैं, डोंट थिंक कि वहाँ बैठ जाएंगे तो ग्लोबलाइजेशन का सवाल पर भी है ना पॉइंट जनरेट नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। आपको पहले पहले बना के जाना होगा पॉइंट जनरेट, उसके लिए नोट मेकिंग भी आता है, ठीक है ना। सो सम पीपल आई एम गोइंग टू टेक फॉर पर्सनल मेंटरशिप, ठीक है ना, लाइक 3 मंथ्स 6 मंथ्स एंड डिपेंडिंग ऑन देयर नीड एंड ऑल्सो। उस प्रोसेस में मैं नोट मेकिंग क्या होता है वो भी कर दूंगा, एंड इफ़ आई हैव टाइम देन आई कैन क्रिएट माई ओन नोट्स जहाँ पे मेरे बहुत सारे फ्रेगमेंटेड हैं, ठीक है ना। सो आई विल लुक टू कंसोलिडेट इट, और एक वन स्टॉप नोट सोल्यूशन ऐसा मैं देने की कोशिश करूँगा। बट आई वांट कि आप खुद भी जनरेट करो, स्टार्ट करो, ठीक है ना, बिकॉज अगर वो करोगे तो आप नोट बनाते टाइम ही आपको है ना बहुत चीज़ें याद रह जाएंगी, आपके दिमाग में बैठ जाएंगी, ठीक है ना। फॉर सर्टेन थिंग्स विच यू डोंट हैव वो वैल्यू एडिशन के लिए लो, पर कोर के लिए क्या होगा, एक साथ दो काम हो जाएगा, क्योंकि आप नोट खुद से बनाओगे तो आपके दिमाग में चीज़ें अच्छे से बैठी रहेंगी। बट एनी वे, लाइक फॉर ऑप्शनल आई एम गोइंग टू गिव नोट, क्योंकि ऑप्शनल के नोट्स बनाना वो काफ़ी टफ है। लाइक फॉर PSIR आई एम गोइंग टू कंसोलिडेट ऑल माई नोट्स, ठीक है ना, आई एम गोइंग टू लाइक गिव इट टू पीपल, ठीक है ना। सो वो मैं करूँगा, बिकॉज दैट PSIR नोट्स इज़ लाइक कॉम्बिनेशन ऑफ लाइक 6 to 7 बुक्स that I have read and I have synthesized, I have added my own thing and everything. So वो ज़्यादा important है। पर GS also I will see if enough people, if I see that there is a like demand and there is a pressing need to addition, और मैं देखूँगा उनकी नोट्स भी whether they are, मतलब I will tell them how to make it, but if I see कि they are not मतलब कीपिंग अप जो रिक्वायरमेंट है यहाँ तक के लिए लेवल 3 और लेवल 4 के लिए, देन आई विल गिव माई ओन, ठीक है ना, और आई विल क्रिएट माई ओन, और उसको मैं अच्छे से पैकेज करके दूँगा। बट करना कैसे है, दिस इज़ इट, दिस इज़ हाउ यू आर गोइंग टू डू दिस थिंग। यू आर गोइंग टू क्रिएट वेरी गुड नोट। ये पॉइंट आपके फिंगर टिप्स पर होने चाहिए, उससे पहले आपके नोट पर होना चाहिए। जब आपके नोट पे होगा देन ओनली आप उसको रिवाइज करोगे 4 बार 5 बार वो होगा। एक बार आपने प्रिलिमिनरी से नोट बना लिया, देन यू डोंट हैव टू रेफर टू एनी लेक्चर, यू डोंट हैव टू रेफर टू एनी बुक्स, you don't have to refer to any study material. Your note will be the only thing. It will be boring, it will be soulless, but this is going to land you to the service of your desire, और बस उसका लिखना है, ठीक है ना। सो जो आप आंसर लिखना स्टार्ट करोगे, और मैं कुछ यूट्यूब में ऐसे सेशन लेते रहूँगा जहाँ पर आई एम गोइंग टू डेमोन्स्ट्रेट कुछ मैं टॉपिक्स पर ब्रेन स्टॉर्म करना सिखाऊंगा, ठीक है ना, हाउ टू जनरेट। इन दैट प्रोसेस ओनली यू कैन राइट टेक नोट्स, और आपका दिमाग को भी मैं उस तरह से रिचार्ज करूँगा ताकि यू कैन थिंक ऑन योर ओन ऑल्सो, ठीक है ना। सो माई पॉइंट इज दिस, एंड लेटर आई कैन ब्रिज दैट थिंग बाय माई ओन नोट, ठीक है ना। सो दिस इज़ इट, दिस इज़ हाउ यू आर गोइंग टू गो अबाउट योर थिंग्स। सो लेट्स इम्प्लीमेंट दिस स्ट्रैटेजी विथ अ क्वेश्चन, ठीक है ना। क्वेश्चन देखते हैं और ये फ्रेमवर्क को अप्लाई करते हैं और मूव करने की कोशिश करते हैं इस पिरामिड में, ठीक है। चलो, सो आई एम गोइंग टू टेक अ क्वेश्चन दैट I have recently conducted a test series, and in that a mains test series come mentorship program. This is a ethics paper, ठीक है ना, which I conducted few days back, और उसमें ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को आप देखो, ठीक है, ये क्वेश्चन को आप देखो अच्छे से, थिंक अबाउट इट, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको क्या दिख रहा है, इन द एरा ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड बिग डेटा, ठीक है, इन द एरा ऑफ artificial intelligence and big data, what ethical challenges arise in the domain of governance and public service। मैं पहले ना एक रॉन्ग तरीका कैसे होता है सॉल्व करने का वो भी बताता हूँ, बिकॉज आई हैव इवैल्यूएटेड लॉट ऑफ कॉपीज़ पर्सनली, सो थोड़ा सा मुझे उसका आइडिया लगा है, ठीक है ना। सो आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू, ठीक है। एंड सो क्वेश्चन है, इन द एरा ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड बिग डेटा, व्हाट एथिकल चैलेंजेस अराइज इन द डोमेन ऑफ गवर्नेंस एंड पब्लिक सर्विस डिलीवरी, सजेस्ट इथिकल फ्रेमवर्क्स टू नेविगेट दिस चैलेंजेस, ठीक है ना। ये 10 मार्कर है, 10 मार्कर मैंने मेंशन कर दिया है, वहाँ पर तो इतने एक्सप्लिसिट वे में नहीं रहता है, ठीक है ना। तो वो 2 पेजेस होगा, 150 वर्ड होगा, 150 तो हटा ही दो, नोबडी काउंट्स इट, 2 पेजेस ध्यान रखना होता है, ठीक है। अब ये सवाल है लोग क्या कर रहे हैं, इसका मैंने आंसर पढ़ा, मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये इसमें ना लोग बहुत ज़्यादा है ना GS3 टाइप आंसर लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। दे आर राइटिंग GS3 स्टफ़, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देख रहे हैं, बिग डेटा देख रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी वाला एंगल आ जा रहा है, वो आपको ऐसा लगेगा कि GS3 के आंसर है। पर आपको ये देखना है ना, यहाँ पे कीवर्ड क्या है, इथिकल चैलेंजेस है, दिस इज़ द कीवर्ड, दिस इज़ अ क्वेश्चन ऑफ GS4 का क्वेश्चन है, दिस इज़ अ क्वेश्चन ऑफ GS4 का क्वेश्चन है ये GS3 का सवाल नहीं है। कोई रीज़न होता है ना, अगर आपसे पॉवर्टी के बारे में पूछा जाता है, पॉवर्टी से रिलेटेड सवाल, बहुत ध्यान से मैं बोल रहा हूँ, लाइक एवरी वर्ड इज़ अ गोल्ड डस्ट, पे वेरी क्लोज अटेंशन, ठीक है ना। हर चीज़ को है ना मैं एक वीडियो सेपरेट वीडियो में नहीं बताना चाहता हूँ, डेट्स व्हाई टोल्ड यू एट द आउटसेट, पिक अ पेन, पिक अ पेपर, ठीक है ना, कीप राइटिंग, ठीक है। सो कोई एक सवाल होता है पॉवर्टी का सवाल आपको देखोगे एससी के टॉपिक में पूछा जा सकता है, पॉवर्टी आपसे GS1 में भी पूछा जा सकता है, GS1 में भी सवाल आ सकता है पॉवर्टी से रिलेटेड किसी फॉर्म में, GS4 में भी आ सकता है,
ठीक है ना। GS2 का तो पूरा एक्सप्लिसिट टॉपिक है, और GS3 में भी आ सकता है, इकोनॉमी एंगल है, बहुत सारे एंगल है, ठीक है ना, वहाँ भी आ सकता है। तो आपको क्या लगता है पॉवर्टी का सवाल आएगा कहीं भी और आप एक ही तरीके से लिखेंगे? यू आर गोइंग टू राइट इन अ सिमिलर वे और इन अ सेम वे, और यू आर गोइंग टू राइट इट इन अ डिफरेंट वे? Like you have to write a same topic which can be asked in all those 5 papers, like be it essay and GS 1 to 4. You have to customize it na, you have to customize it according to the need of that paper, ठीक है ना. You can't write in a same way in all those 4 papers. Okay, like just like same question, like सब forget about, मेरे को थोड़ा और स्ट्रेच करना दो. Poverty can be asked in your optional also, ठीक है ना, in many optional like sociology, like in PSIR also some reference, ठीक है ना, I don't know, and there are many other options. There also poverty, some tangential or some reference can be asked related to poverty. So you are going to write it in the same way? No. If you write the same content na, in GS2 it can fetch you like 5 or 6 out of 10. Similarly in other paper it can fetch you 2 out of 10, ठीक है ना. So that is the variation. So you have to always understand in which paper it is being asked. So you have to contextualize your answer as per the demand of the question, ठीक है ना. So this question is paper 4, this is of ethics, and explicitly it has mentioned ethical challenge. Even if it has not mentioned ethical challenges, if you are writing ethics, just wear the hat of GS4 पेपर, ठीक है ना. इवन क्योंकि मल्टी डिसिप्लिनरी टॉपिक आ रहा है ना, एक ही टॉपिक आ रहा है जिसका अलग अलग डिसिप्लिन में पूछा जा रहा है. सो ऑलवेज रिमेंबर, GS3 में जा रहे हो, अपने जो होता है ना, जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख रहे हो सवाल को, वो चेंज कर लेना. चेंज द लेंस थ्रू विच यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट द पेपर, ठीक है. सो अब ये सवाल देखे तो मैंने देखा कि बहुत लोग GS3 तरीके से लिख रहे हैं. डैट इज़ रॉन्ग, यू शुड नॉट डू इट. उसके बाद मैं देख रहा हूँ वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तो बहुत लंबा कहानी लिख रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में एंड बिग डेटा के बारे में, ठीक है ना. 2 पेज है आपके पास, उन्होंने पहला पेज भर दिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड बिग डेटा से ही. दैट इज़ ऑल्सो बिग नो, ठीक है ना, ये भी नहीं करना होता है. फिर सम पीपल आर, मतलब वो पैराग्राफ फॉर्म में लिख रहे हैं, ठीक है ना, वो 4 पैराग्राफ में लंबा लंबा लिख रहे हैं. दैट्स नॉट हाउ यू राइट GS पेपर्स, दैट इज़ अगेन रॉन्ग. सो मेनी थिंग्स. फिर कुछ है ना, मतलब सिंपल बड़ा सा इथिकल चैलेंजेस लिख रहे हैं, या फिर वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देखे उन्होंने ना इसकी निगेटिव लिखना स्टार्ट कर दिया. दे आर शॉर्ट कमिंग्स, दे आर राइटिंग शॉर्ट कमिंग्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड बिग डेटा. दैट इज़ ऑल्सो रॉन्ग, ये भी आपको नहीं करना होता, ठीक है. सो आपको है ना, इसको है ना अच्छे से कैसे करेंगे, जो मैंने बोला, हर क्वेश्चन को आपको 3 से 4 सब पार्ट में डिवाइड करना होता है. मैंने प्रीवियस वीडियो में क्या बोला था, गो एंड आइडेंटिफाई सब प्लॉट, सब थीम, सब क्वेश्चन, ठीक है ना. उससे करो, और फिर उससे आगे ना आपको ईजी हो जाता है सवाल को सॉल्व करना, ठीक है ना. और एग्जामिनर को भी ईजी होता है उस सवाल को चेक करना. और फिर वो है ना हर सब पार्ट पर आपको मार्क्स देता है, और वो है ना क्यूमुलेट होकर के बहुत अच्छे मार्क्स बन जाएंगे. 6 to 7 आ जाएगा आपको 10 में, क्योंकि यहाँ भी 1.5 दे देगा, इसमें भी 1.5 दे देगा, इसमें भी 1.5 दे देगा, इसमें एक में 2 दे देगा. तो आप देख लो ये जोड़ करके कितना अच्छा नंबर बन जा रहा है, ठीक है ना. 6.5 बन जा रहा है. 4 सब पार्ट लिखोगे तो ना, नहीं तो ओवरऑल वो पढ़ लेगा पूरा, उसको लगेगा अच्छा 3 दे देते हैं या 3.5 दे देते हैं. सो दैट्स हाउ दे इवेलुएट पेपर्स. तो ये तक बता रहा हूँ. तो इसमें आप क्या करोगे, आपको दिख रहा होगा, पहला स्टार्ट करोगे एरा ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड बिग डेटा ना, तो कॉन्टेक्चुअलाइज करो, इसके बारे में कुछ ऐसा लिखो जिसमें ये दोनों, ये भी है, कुछ लोग ऐसे AI पे ही घुस गए, बिग डेटा वाला एंगल हटा दिए, ठीक है ना. सो बिग डेटा वाला अगर क्वेश्चन में कुछ भी चीज़ है वो सैक्रोसेंट है. लोग तो ऐसे में भी टॉपिक का एक कीवर्ड को ही मिस कर दे रहे हैं, मतलब दे आर नॉट टचिंग वन ऑफ द कीवर्ड्स ऑफ द ऐसे टॉपिक एट ऑल. दैट आई हैव ऑल्सो इनकाउंटर्ड while evaluating essay papers, ठीक है ना. सो in next video I'm going to take on essay topic and I'm going to give you the key structure, how to score great marks in essay. Just like this video is a master class for GS 1 to 4. That video is going to be absolute master class for the essay enrichment. One video, all encompassing video, ठीक है ना. So there also I will take up one topic and I will demonstrate it, because I have evaluated a lot of papers and I have given personal feedback, and from there I have also understood what are the things people are getting wrong. So I will deal with that also, ठीक है. सो इसमें क्या होगा, बहुत लोग क्या कर रहे हैं, बिग डेटा को टच ही नहीं कर रहे हैं. वो ऐसे के ही थीम को कुछ जो ऐसे के जो थीम के टॉपिक होते हैं उसको भी नहीं टच कर रहे हैं. तो यहाँ तो और ही आप छोड़ दो, वहाँ तो 125 मार्कर एक सवाल है, वहाँ वो मिस कर रहे हैं, तो यहाँ भी वो कर रहे हैं. तो आपको है ना ऐसा करना है, एक इंट्रोडक्शन लेना रहता है जिसमें ये सब थोड़ा सा टच हो जाए, ठीक है ना. ये मेन थीम नहीं है, इसको डील नहीं करना है, पर मतलब लेना है ऐसा थोड़ा सा, एकदम पूरा नहीं छोड़ना. लिख के तो आप एक्सप्लिसिट जा सकते हो. अब इसमें आया कि एरा है, तो कोई एक ऐसा डेफिनेशन लो जहाँ पर गवर्नेंस, पब्लिक सर्विस डिलीवरी में कैसे हेल्प किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा, उसको लेते हुए फिर इथिकल चैलेंजेस तक जाना है. मतलब इंट्रोडक्शन ऐसा होना चाहिए कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बिग डेटा कैसे गवर्नेंस और पब्लिक सर्विस डिलीवरी में अच्छा किया है, और फिर सर्टेन इथिकल चैलेंजेस अराइज किया है. क्योंकि डील तो आपको व्हाट क्या बोल रहा है,
इथिकल चैलेंजेस ही को डील करना है, तो बाद में तो आप हेडिंग डाल के इथिकल चैलेंजेस ही लिखोगे, तो स्टार्टिंग में थोड़ा पॉजिटिव लिख करके, ठीक है। अब ये करेंगे, अब इसको सेगमेंट करते हैं, इस सवाल को कैसे ब्रेकआउट करते हैं मल्टीपल क्वेश्चन में, जो मैंने ऊपर समझाया। अब इसको प्रैक्टिकल देखते हैं। इसमें क्या होगा, इथिकल चैलेंजेस है मेरा एक थीम इन द डोमेन ऑफ गवर्नेंस, ये हो गया पहला। पब्लिक सर्विस डिलीवरी, ये हो गया दूसरा सब पार्ट। सजेस्ट इथिकल फ्रेमवर्क टू नेविगेट दिस चैलेंजेस, ये तो हो गया तीसरा। तो ये 3 जो मैंने बोला कि 10 मार्कर में 3 और 15 मार्कर में 4 तो होना ही चाहिए, 15 मार्कर में 4 कंपलसरी है, 3 और 4 के बीच में तो होना ही चाहिए, ठीक है ना। अगर 3 लिख रहे हो तो सब में पॉइंट ज़्यादा लिख दो, मतलब 5 या 6 तो पॉइंट डाल ही दो, ठीक है ना, ऐसे करके। सो ये आपके 3 तो मुझे ऐसे सीधा दिख गया, 4 और करना होगा तो और कुछ इथिकल फ्रेमवर्क के बाद आप ये भी बोल सकते हो कि क्या क्या गुड थिंग्स हुई हैं, ठीक है ना, वो भी एक थोड़ा सा डाल सकते हो चौथा। तो आप कैसे एक पूरा ब्रॉड क्वेश्चन को यहाँ इंट्रो डालते हो, यहाँ इसके बॉडी में ये एक पहला थीम हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया सब क्वेश्चन, और फिर कंक्लूजन है, ठीक है ना। सो आप देख सकते हो इंट्रो, कंक्लूजन और ये 3 सब क्वेश्चन और 3 सब क्वेश्चन, और चौथा में आप वे ऐड करके भी डाल सकते हो कि थोड़ा सा नहीं होता है एक एडिशन में, ठीक है। सो एडिशन में कैसे डालते हैं, उसमें भी ऐसे होगा कि पूरा अपना यहाँ 3 लिख दोगे, यहाँ कंक्लूजन लिख रहे हो तो यहाँ पर कि सम ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिसेस जहाँ नहीं तो इथिकल फ्रेमवर्क कहाँ अच्छी हुई हैं, ऐसे करके ऐसे करके लिख सकते हो, ठीक है ना। स्पेस के बीच में कंस्ट्रेंट, क्योंकि आपको 2 पेज में ही सब कुछ डालना रहता है, ठीक है। अब मैं ये सवाल हो गया, अब इसको मैं डेमोन्स्ट्रेट करने से पहले आई टेक अप 1 सैम्पल कॉपीज़ जो कि इवैल्यूएशन मैंने किया अपने मेंस टेस्ट सीरीज़ जो प्रोग्राम लॉन्च है उसमें मैंने देखा, तो कुछ लोगों ने बहुत अच्छे से किया, ठीक है ना। सो जस्ट फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग दिस कॉपी, और इन्होंने भी अच्छे से किया। ये सवाल था, आई थिंक ये तो मैंने इवेलुएट किया तो रेड पेन से मेरा इवेलुएशन है, पर इस पर्सन ने बहुत अच्छे से, यहाँ पर आप देखोगे जो मैं अभी बता रहा हूँ इन्होंने इस तरीके से ही समझाया कि व्हाट एथिकल चैलेंजेस है, गवर्नेंस है, इन्होंने देख रहे हो आप अच्छे से इन्होंने मेंशन किया हुआ 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट, ये तो मैंने एक्सप्लिसिट इवेलुएट करने में रेड पेन से कर दिया कि ये अच्छा है, पर इन्होंने बहुत अच्छे से ब्रेकआउट किया, बहुत लोग नहीं कर पाए, ठीक है ना। फिर इन्होंने स्ट्रक्चरिंग में ये दिखा रहा हूँ कि स्ट्रक्चरिंग कैसा है, ठीक है ना। फिर ये इंट्रोडक्शन हो गया, ये पार्ट जो है इंट्रोडक्शन इन्होंने किया, ये इंट्रोडक्शन है, ये इंट्रो है इनका, ठीक है। विद द इंक्रीजिंग यूज एंड क्लियरली विजिबल एडवांटेज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड बिग डेटा द गवर्नेंस एंड पब्लिक सर्विस डोमेन इज फेसिंग सम, ये है भाई थोड़ा सा और भी, मतलब इंट्रो अच्छा है, ठीक है ना, पर इसको और ज़्यादा पावर बना सकते हैं। जैसे मैंने क्या बोला कि वैल्यू एडिशन, ये जो मैंने बात बोली है वैल्यू एडिशन सबसे ऊपर, इसमें आप इंट्रो में ही कुछ डाल सकते हो, कोई एक अच्छा मतलब कोई भी एक ग्लोबल है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्लोबल है, ठीक है ना। आप कुछ ऐसा दिखा सकते हो इंट्रो में जहाँ से उसका मतलब इमेजिनेशन कैप्चर हो जाए एग्जामिनर का, उसको लगे कि यार जैसे यूनेस्को का कोई एग्रीमेंट हुआ है, यूनेस्को ग्लोबल एआई एथिक्स एग्रीमेंट है, ठीक है ना, वो रिकॉग्नाइज़ करता है ये जो चैलेंजेस आ रहे हैं, ठीक है ना, इथिकल चैलेंजेस जो आ रहे हैं उसके बारे में रिकॉग्नाइज़ करता है। सो एक ब्रॉड है, आप उसको कंक्लूजन में डालो या फिर आप उसको इंट्रो में डालो। तो वैल्यू एडिशन जो होता है ये आप बॉडी में भी डाल सकते हो, कंक्लूजन में भी डाल सकते हो, और आप इसको इंट्रोडक्शन में भी डाल सकते हो। सो ये एक अच्छा तरीका है, ठीक है ना, आपको करने का। सो ये भी आप यूटिलाइज़ करो, जो चीज़ में आपको जो चीज़ याद आ जाए, ठीक है ना। अगर आपको कहीं भी याद आ जाए, अगर आपको लगता है कोई पॉइंट आपको बॉडी में देना है, उसको सब्सटेंशिएट करने के लिए वैलिडेशन करना है तो वहाँ कर दो। अगर आपको लगता है इंट्रो में करना है तो उसको वहाँ कर दो, कंक्लूजन में लगता है तो आप उसको वहाँ कर दो, ठीक है ना। सो इन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं, पर अगर आप करोगे तो ये मार्क्स और ज़्यादा जाएगा, ठीक है ना। यू शुड टारगेट हाईएस्ट कितने आएंगे इसमें, आई थिंक 7 आ सकते हैं, 7/10, और कोई टीचर को बहुत पसंद आ गया तो 7.5 दे सकता है, ठीक है ना। 75% ऑफ द मार्क्स दैट कैन बी द हाईएस्ट एनीबडी कैन गेट, आई थिंक, ठीक है ना। सो ये करोगे, जितना ज़्यादा वैल्यू एडिशन करोगे उतना मिलेगा। तो इंट्रो में भी आप वो कर सकते हो, पर आई एम मोर फोकस्ड ऑन द स्ट्रक्चरिंग, क्योंकि बहुत लोगों का स्ट्रक्चर करने नहीं आ रहा है। सो ये स्ट्रक्चरिंग हो गया, ये हो गया इंट्रो। देख रहा हूँ उन्होंने कितना स्पेस दिया, आई थिंक 3-4, यही 3-4 इतना ही तक होना रहता है स्पेसिंग, इतना ही स्पेसिंग देना रहता है, ये नहीं कि पूरा भर दिए, ठीक है ना। ये नहीं हुआ कि यहाँ तक उन्होंने पूरा भर दिया। सो ये जितने भी रेड है ये मेरा इवैल्यूएशन का मेंशन है, जो उन्होंने लिखा हुआ ब्लैक में है, तो आप बस वो देखते रहना, थोड़ा कंफ्यूज मत होना बहुत सारी चीज़ों का। सो इन्होंने अब फिर क्या किया, इन्होंने अच्छे से अंडरलाइन किया इथिकल चैलेंजेस इन गवर्नेंस ऑफ एआई एंड बिग डेटा, बहुत अच्छा हेडिंग दिया है, सब हेडिंग दिया है। मैंने इनको बोला थोड़ा और बॉक्स में बना दो, क्योंकि मतलब एग्जामिनर पता नहीं थका हो, उतना मूड में नहीं हो, बोर हो चुका हो। सो मतलब कोई मौका नहीं छोड़ते हैं, अच्छी चीज़ है, उनको बाद में बॉक्स ही दिखेगा, चलो ये भी डील है, भले ये पॉइंट कितने अच्छे हैं, कितने शार्प हैं, कितने इंसाइसिव हैं, ये दिखे या ना दिखे, पर वो पॉइंट जरूर उनको दिखेगा, ठीक है ना। सो इथिकल चैलेंजेस इन गवर्नेंस ऑफ एआई एंड बिग डेटा, ठीक है ना, इसको आप बॉक्स में डालो। अब देखो इन्होंने कैसे किया, गवर्नेंस को 1 डाला, पब्लिक सर्विस डिलीवरी को 1 डाला, ठीक है ना।
ये ऐसा नहीं किया, बहुत लोगों ने ना सीधा पॉइंट ले लिया ये दोनों को। भाई आप फ्रैगमेंट करो ना, गवर्नेंस एक अलग डोमेन है, पब्लिक सर्विस डिलीवरी एक अलग डोमेन है, आप एक ही में क्यों कर दे रहे हो, ठीक है ना। मतलब मोनोटोनस हो जाएगा ना, फिर बस दो बड़े बड़े पैराग्राफ बनेंगे, ठीक है ना। सो ये चीज़ें इन्होंने अच्छा किया, उन्होंने एक हेडिंग डाला गवर्नेंस से रिलेटेड, तो आप भी एक लेना बॉक्स बनाना और एक को पूरा हेडिंग डालना, ठीक है। उसके बाद फिर इन्होंने पॉइंट जनरेट स्टार्ट किया, 4 पॉइंट है, 4 ठीक है, आई थिंक 5 डालना चाहिए था, अगर आप 4 सब हेडिंग नहीं डालो तो 5 डालो। तो एक इथिकल चैलेंजेस इन गवर्नेंस ऑफ एआई इन बिग डेटा, ठीक है ना। फिर इन्होंने इथिकल चैलेंजेस ऑफ एआई इन बिग डेटा इन पब्लिक सर्विस, ये दूसरा पॉइंट, ठीक है ना, इसमें भी उन्होंने 3 डाला है, पर स्ट्रक्चरिंग की बात कर रहा हूँ। फिर इथिकल फ्रेमवर्क टू नेविगेट दिस चैलेंजेस, फिर इन्होंने इथिकल फ्रेमवर्क दिया और फिर यहाँ पर इन्होंने कंक्लूड कर दिया। सो एक तरह से एग्जामिनर देखेगा तो उसको लगेगा ठीक है, इन्होंने सारे क्वेश्चन के हर पार्ट को तो डील किया, इंट्रो में इन्होंने ब्रॉडली ये चीज़ों को डील कर दिया, फिर इन्होंने इसको डील किया, फिर इन्होंने इसको डील किया, फिर इसको डील किया। इससे क्या फील आता है, होलसम फील आता है। अब ऐसे क्वेश्चन में ना कोई भी एग्जामिनर हो, अगर ये आंसर होगा 5 से तो कम नहीं देगा, क्योंकि उसको लगेगा यार सब कुछ तो डील किया हुआ, ठीक है ना, पॉइंट भी ठीक ठाक ही हैं, वो पड़ेगा। पर ये फ्रेमवर्क कर लोगे 5 आ जाएगा। फिर वैल्यू एडिशन का आ जाता है, पॉइंट कितने अच्छे लिखते हो उस पर आ जाता है, सब्सटेंशिएशन कितना चाहते हो उस पर आएगा। फिर है ना आप 6 to 7 के बीच में फाइट करोगे। पर ये अगर फ्रेमवर्क कर रहे हो और एक मतलब डिसेंट पॉइंट भी लिख रहे हो 4 से 5 के बीच में, तो आपको जो लैंड कर जाओगे। एंड इवन इफ यू आर एबल टू रिप्लिकेट इट इन ऑल 20 क्वेश्चन, दैट इज़ अ गुड एनफ। सो पहले स्ट्रक्चर जानो, मेनी पीपल आर नॉट एबल टू स्ट्रक्चर इट वेल। सो आई होप कि ये एक मैं सम ऑफ द पीपल हु हैव रिटन उन्हीं का लिया है, इट्स नॉट लाइक आई एम राइटिंग इट, ठीक है ना, कि ताकि मैं और ज़्यादा आपको रियल रॉ फील दूँ, ठीक है ना। सो दिस इज़ वन ऑफ द कॉपी दैट हैज़ बिन रिटन इन द रियल टाइम, ठीक है ना, और उन्होंने इसको लिखा है और ऐसे किया है उसी क्वेश्चन का जो क्वेश्चन टेस्ट में था, फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। सो आई होप स्ट्रक्चरिंग पार्ट इज़ डन, ठीक है ना। अब आता है बात कि इसको और कैसे अच्छे से लिख सकते थे, ठीक है ना। दैट लाइक दिस स्ट्रक्चरिंग विल गेट यू एटलीस्ट 4 मार्क्स, ठीक है ना, आउट ऑफ 10। अब इसको लिखने के तरीका कैसे होगा, जो दैट इज़ द आइडियल थिंग, दैट जो हमने पिरामिड की बात की है, सबसे ऊपर वाला जो पिरामिड है लेवल 4, यहाँ पर कैसे कैसे जाएँ और कितना अच्छे से लेकर जाएँ। सो आई एम गोइंग टू डेमोन्स्ट्रेट, और ब्रेनस्टॉर्म कैसे करें, कीवर्ड एनालिसिस कैसे करें, वो अब डेमोन्स्ट्रेट करने जा रहा हूँ। सो पे अटेंशन नाउ। आई नो वीडियो लंबा हो चुका है, बट मेरे को है ना एक में ही कंप्लीट करना है सबको, ठीक है ना। सो पॉज इट, अगर आपको मतलब थोड़ा सा चिल करना, रिफ्रेश होना है, रिफ्रेश हो लो, ठीक है ना। लेकिन पे अटेंशन अभी से आगे जो होने वाला है, ठीक है ना, बिकॉज दिस इज़ एज गुड एज 100 वीडियोज़ यू आर गोइंग टू वॉच, ठीक है। सो अब इसका इंट्रोडक्शन क्या होगा, सवाल है इन द एरा ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड बिग डेटा। चलो यहाँ अच्छा सा, इन द एरा ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड बिग डेटा, ठीक है ना, व्हाट एथिकल चैलेंजेस अराइज इन द डोमेन ऑफ गवर्नेंस एंड पब्लिक सर्विस डिलीवरी, ठीक है ना। तो आपने देखा गवर्नेंस भी है, पब्लिक सर्विस डिलीवरी भी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है, बिग डेटा भी है। तो इंट्रो में आप कैसे करोगे, इंट्रोडक्शन का मतलब ये होना चाहिए जो इंटायर समरी है, जो एसेंस है इस क्वेश्चन का, ठीक है ना, वो कैप्चर होना चाहिए। तो आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड बिग डेटा एनालिटिक्स, ठीक है ना, इट प्रोमिसेस टू रिवोल्यूशनाइज हाउ गवर्नमेंट फंक्शन फ्रॉम प्रेडिक्टिव पॉलिसिंग इन प्रेडिक्टिव पॉलिसिंग जो है वो आपका डिजास्टर मैनेजमेंट में हो सकता है, ठीक है ना, टू स्मार्ट चैटबॉट्स, टू AI ड्रिवन वेलफेयर डिस्ट्रीब्यूशन। क्यों, क्योंकि इसमें पब्लिक सर्विस डिलीवरी भी है। तो थोड़ा सा प्रेडिक्टिव पॉलिसी हो गया, थोड़ा सा गवर्नेंस रिलेटेड, ठीक है ना, जहाँ पर बहुत सारे डेटा फिट किया जाता है। फिर ये जो प्रेडिक्टिव पॉलिसिंग है वो बिग डेटा एनालिटिक्स को भी कैप्चर कर रहा है, ठीक है ना, क्योंकि डेटा से फील्ड होगा तो आप प्रिडिक्ट कर पाओगे कि अच्छा ये आगे का ये होगा, कैसे इफेक्ट होगा। सो प्रेडिक्टिव पॉलिसिंग जो है वो एक अच्छा की टर्म है जो कि यूज़ कर रहा है इस दोनों चीज़ों को, ठीक है ना, बिग डेटा एंड क्या कहा जाता है इसको, बिग डेटा को और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। और वो आप स्टार्ट कर रहे हो तो ऐसे दिखाओगे कि फ्रॉम दिस टू दिस, ये तक करता है ना, एक वाइड इनकम पास देता है क्योंकि इंट्रो है, ठीक है ना। सो दिस टेक्नोलॉजीज प्रोमिस टू रिवोल्यूशनाइज हाउ गवर्नमेंट फंक्शन फ्रॉम प्रेडिक्टिंग पॉलिसिंग एंड इन डिजास्टर मैनेजमेंट टू स्मार्ट चैटबॉट्स टू AI ड्रिवन वेलफेयर डिस्ट्रीब्यूशन टू ऑटोमेटेड डिसीजन मेकिंग सिस्टम। जो भी आप एक पूरा रेंज जो होता है उसको आप डिस्कस कर सकते हो, ठीक है ना, कि क्या हेल्प होता है, ठीक है ना। 2 लाइन में रेंज, इंटायर रेंज यू कैन डिस्कस। और फिर लिख सकते हो हाउएवर, क्योंकि इसमें क्या बोल रहा है, चैलेंजेस की बात की जाए तो एक तो आपने पॉजिटिव बहुत अच्छे तरीके से उसका रेंज आपने दिखा दिया। फिर लिखना है आपका हाउएवर दिस टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन ब्रिंग्स फॉर्थ कॉम्प्लेक्स इथिकल डायलेमा, ठीक है ना। और वो जो कॉम्प्लेक्स इथिकल चैलेंजेस एंड दैट मतलब कॉम्प्लेक्स इथिकल चैलेंजेस विच आर एज फॉलोज। फिर आप ब्रैकेट डालोगे, इथिकल चैलेंजेस लिखना स्टार्ट करोगे। कैसे लिखना स्टार्ट करोगे, इन द डोमेन ऑफ गवर्नेंस, ठीक है ना, आप गवर्नेंस डालोगे। ये नहीं कि आप मतलब पूरा पब्लिक सर्विस डिलीवरी दोनों करके नहीं डालोगे। अब जब गवर्नेंस डालोगे यहाँ पर आ जाता है कीवर्ड एनालिसिस, लिखते कैसे हैं, अच्छा कैसे बनाते हैं, पावरफुल कैसे बनाते हैं। और अभी जो मैं कुछ बोलूँगा
उसको आप नोट में भी डाल के कर सकते हो, एआई डाल के कर सकते हो। उसमें ये कीवर्ड को ध्यान रखना, जो मैं बोला ना पॉइंट जनरेशन में ना आपको इलेबोरेट नहीं करना रहता है, कीवर्ड लिखना रहता है, ठीक है। अब इन्होंने जो कीवर्ड लिखा है लाइक लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, ठीक है, प्राइवेसी वायलेशन, डिजिटल प्रोपेगेंडा, मिसयूज़ ऑफ पब्लिक डेटा, ठीक है, ये सब जो है वर्ड ये काफ़ी ज़्यादा मतलब काफ़ी ये मतलब लेमन टाइप है। मतलब आई ऑलवेज कीप सेइंग, मतलब बहुत सारे लोगों को मैंने फीडबैक में ये बोला है कि स्पेशली फॉर द एसे, इफ़ आई सी योर आंसर्स एंड देन मुझे है ना वो आंसर्स देख के पता चल जाना चाहिए एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या है, ठीक है ना। अगर आप ये लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, प्राइवेसी वायलेशन, डिजिटल प्रोपेगेंडा ये सब देख रहे हो, इससे है ना बहुत सारी चीज़ों के सेम ही आंसर हो सकते हैं। सो द की प्रिंसिपल इज टू डिसाइड कि आप अच्छे पॉइंट लिख रहे हो कि नहीं, अच्छे आंसर्स लिख रहे हो कि नहीं। सो दो टचस्टोन जो लिटमस टेस्ट होगा वो ये होगा कि आप कितना ज़्यादा प्रिसाइज लिखते हो, कितना ज़्यादा टॉपिक ओरिएंटेड लिखते हो और कितना कस्टमाइज लिखते हो। उसके लिए ना आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक कीवर्ड यूज़ करना रहता है, थोड़ा थोड़ा है ना ट्विस्ट रहता है। अदरवाइज़ ये बहुत ही लेमन वर्ड हो गया, बहुत जेनरिक पॉइंट्स हो जाएंगे, ठीक है ना। स्ट्रक्चर इन्होंने बहुत अच्छा किया, पॉइंट्स भी ठीक लिखे हैं, पर मैं उसमें ना एज लाना चाहता हूँ, शार्प एज, ठीक है ना। थोड़ा सा ना इंसाइसिव पॉइंट देना चाहता हूँ, तो पढ़ के ना मतलब उसको लगे यार क्या लिख दिया इस बंदे ने, ठीक है ना, ऐसे। सो उसमें ना आपको थोड़ा कीवर्ड डालना रहता है। कीवर्ड क्या होता है, बहुत लोग सब बोलते रहते हैं कीवर्ड, जैसे पहले मैं बोलता था पीवाईक्यू एनालिसिस कर लो, तो वो पीवाईक्यू एनालिसिस करते कैसे हैं, एग्जैक्ट क्या होता है, वो आधे को पता नहीं था, ठीक है ना। सिमिलरली कीवर्ड आप बचपन से सुन रहे हो, मतलब बचपन से नहीं, मतलब जब से आप स्टार्ट किए हो प्रिपरेशन तब से आपको कीवर्ड सुन रहे हो। पर कीवर्ड होता क्या है, कीवर्ड होता है एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक, और उससे भी ज़्यादा मैं बोलूँगा क्वेश्चन स्पेसिफिक। थोड़ा सा है ना आप बात लिखो जो थोड़ा सा ना पॉलिश्ड हो, थोड़ा सा फिनेस हो उसमें, और थोड़ा सा शार्प लगे, मतलब उस लगे कि हाँ यार मतलब उस सब्जेक्ट डोमेन स्पेसिफिक बंदे ने बात लिखी है। ऐसा ना लगे लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, आप GS1 सब में लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी लिख सकते हो, फिर वो एज कहाँ मिल रहा है। अब यहाँ पर अगर आप लिखते हैं डिफ्यूज्ड अकाउंटेबिलिटी, ये हो गया कीवर्ड, ठीक है ना। ये लगेगा कि यार ये छोटी बात है, पर इसने ना समझा दिया बहुत बात को। अब डिफ्यूज्ड अकाउंटेबिलिटी को अगर आप समझाओगे तो इसका मतलब ये होगा कि ऐसा सिस्टम, ऐसा मॉडल है कि आपको समझ में नहीं आया कि AI जब है तो मॉडल को अकाउंटेबल बनाए, एल्गोरिदम को अकाउंटेबल बनाए, टेक्नोलॉजी को अकाउंटेबल बनाए, या फिर द मैन पावर जो हुई इज़ ड्राइविंग उसको अकाउंटेबल बनाए, या गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाए जो रेगुलेट कर रहा है। सो अकाउंटेबिलिटी हैज़ बिन डिफ्यूज्ड। अब लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी लिख रहे हो या डिफ्यूज्ड अकाउंटेबिलिटी लिख रहे हो, इसको देख रहे हो ना, एक ही बात को कहने का क्या तरीका कितना वो होता है। तो आप है ना अपने नोट में है ना लिख लिया करो एक कीवर्ड ये आकर के डिफ्यूज्ड अकाउंटेबिलिटी, और इसको है ना जहाँ अच्छा लगे, जहाँ सही लगे वहाँ ना चिपका दो, क्योंकि एग्जामिनर जो GS1 का चेक कर रहा होगा वो आपका GS2 तो चेक नहीं कर रहा होगा, GS2 का जो चेक कर रहा होगा GS3 चेक नहीं कर रहा होगा। सो आप एक पेपर में तो आप कोशिश करो कि मतलब आपके पूरा कीवर्ड भर जाना चाहिए। लाइक आई यूज़ टू प्रिपेयर लाइक थाउजेंड्स ऑफ कीवर्ड, और वो मेरे एकदम फिंगर टिप्स पर आते थे, जहाँ हुआ उसको चिपका दिया, ठीक है ना। सो डिफ्यूज्ड अकाउंटेबिलिटी व्हेन AI ड्रिवन डिसीजंस गो रॉन्ग, ये जो बात है इसी को बोलते हैं कंसाइज राइटिंग। इसको है ना आपने डिफ्यूज्ड अकाउंटेबिलिटी जो है व्हेन AI, जो इसको मैं फिर से अंडू कर देता हूँ, डिफ्यूज्ड अकाउंटेबिलिटी व्हेन AI ड्रिवन डिसीजन गो रॉन्ग, ये जो बात है, ठीक है ना, ये एक लाइन में आ जाएगी ये बात, पर ये बात कितनी अच्छे से चीज़ों को समझा रही है। मतलब आंसर आपको लिखना होता है बहुत कंसाइज, कम में बहुत बातें आप कह जाओ, ठीक है ना, तो उसी को बोलते हैं आंसर राइटिंग, थोड़ा सा रिफाइन, ठीक है। तो इथिकल चैलेंजेस में क्या आएगा, इथिकल चैलेंजेस में आप लिखोगे गवर्नेंस ऑफ AI एंड बिग डेटा में, गवर्नेंस में एल्गोरिदमिक बायस, सबसे बड़ी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात सबसे पहले लिखनी चाहिए होती है, ठीक है ना, क्योंकि जितना ज़्यादा लिखोगे पहले उतना उनके ध्यान में आएगा, अदरवाइज़ उनका ध्यान चला जाएगा, फिसल जाएगा, नीचे चला जाएगा। सो आपको पूरी बात को है ना अच्छे से कहना होता है लास्ट तक, ठीक है ना। तो सबसे अच्छी बात है सबसे पहली, ये सारे मैंने है ना अलग अलग वीडियो बना सकता हूँ, 10 मैं एक ही में डाल रहा हूँ, बिकॉज आई वांट टू मूव इन अ वेरी ऑर्गेनिक वे। पर वो सबको आप नोट करते जाओ कि पहले ही जो बात होगी सबसे इंपॉर्टेंट होगी, दूसरी फिर इंपॉर्टेंट, सबसे हिट करना है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ों को, और फिर है ना लास्ट में आते आते जो एकदम बेसिक पॉइंट जैसे डिजिटल डिवाइड, डिजिटल एक्सक्लूजन हो जाएगा, ये घिसी-पिटी पॉइंट है, हर जगह चिपकती है। तो जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगी उसको आप सबसे ऊपर डालोगे। इसमें सबसे पहला चीज़ क्या आता है AI से रिलेटेड, एल्गोरिदमिक बायस एंड डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो आप सबसे ऊपर में लिख के जब पॉइंट लिखोगे तो एकदम एल्गोरिदमिक बायस एंड डिस्क्रिमिनेशन। अब उससे रिलेटेड वैल्यू एडिशन करना तो एग्जांपल कुछ लिख दो, कोई फेमस जो आपको पता हो कि अरे ऐसा हुआ है, ठीक है ना। मतलब वो आपका चॉइस है कि जिस पॉइंट में आपको दमदार आपके दिमाग में हो, ठीक है ना। पर कीवर्ड होना चाहिए एल्गोरिदमिक बायस एंड डिस्क्रिमिनेशन। अगर वो भी अंदर में लिखना चाहते हो तो थोड़ा सा और एक सब्सटेंशिएट करना चाह सकते हो, तो बोल सकते हो कि एक इम्बेडेड प्रिजिड्यूस होता है ना, मतलब किसी भी AI सिस्टम के अंदर, ठीक है ना। सो दैट इज़ द प्रॉब्लम दैट मोस्ट ऑफ द AI सिस्टम लाइक फील, दैट इज़ इम्बेडेड, इट इज़ इम्बेडेड। आप प्रिजिड्यूस्ड लिखोगे, उसको है ना लिखोगे इम्बेडेड प्रिजिड्यूस्ड इन द AI सिस्टम, ठीक है ना। अब ये क्या हो गया, कीवर्ड हो गया, ठीक है। अब ये
दो दो लाइन रहता है, जैसे कैसे आप देखते हो सुप्रीम कोर्ट ने निकाला था कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, ये कीवर्ड है पॉलिटी का, इसको आना आप कहीं भी चिपका सकते हो, ठीक है ना, जहाँ भी आपको रिलेवेंट दिखे। तो लाइक ऐसे लिख सकते हो कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी शुड ऑलवेज लाइक टेक प्रेसिडेंस ओवर पब्लिक मोरालिटी। अभी ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी शुड टेक प्रेसिडेंस ओवर पब्लिक मोरालिटी, ये वन लाइन है और कितनी बड़ी बात ये बोल रहा है, ठीक है ना। सो दिस इज द कीवर्ड। सो इथिकल चैलेंज में आप क्या लिख सकते हो, एल्गोरिथमिक बायस है, डिस्क्रिमिनेशन है, इट सफर्स फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ लाइक मोस्ट ऑफ द एआई सिस्टम सफर्स फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ एम्बेडेड प्रेसिड्यूस, ठीक है ना, क्योंकि वो हिस्टोरिकल डेटा से फीड होता है। सो हिस्टोरिकल के जो भी बायसेस होते हैं वो आ जाता है, पर ये सब इतना लिखना नहीं है पूरा एक्सप्लेन करके, यही सबसे बड़ा होता है, वो एक्सप्लेन नहीं करना, नया नया चीज़ को टच करना, ठीक है ना। सो आप एक बात को लिखो, कीवर्ड क्या लिख दोगे, एल्गोरिथमिक बायस डिस्क्रिमिनेशन, मोस्ट ऑफ द एआई सिस्टम मॉडल सफर फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ एम्बेडेड प्रेसिड्यूस, दो लाइन खत्म, ठीक है ना, उसको ज़्यादा इलोबरेट नहीं करना। सेकंड पॉइंट में क्या आ जाना, इन्होंने लिखा प्राइवेसी वायलेशन, ठीक है ना, तो प्राइवेसी वायलेशन एंड सर्वेलेंस रिस्क, सर्वेलेंस रिस्क जो मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, ठीक है ना, सर्वेलेंस रिस्क, ये वाला जो है सर्वेलेंस कंसर्न, यहाँ पर सर्वेलेंस स्टेट बनते जा रहा है ना, मतलब बिग डेटा, ये क्या है, बिग डेटा वाला एंगल को भी कैप्चर कर रहा है, ठीक है ना, बिग डेटा एनालिटिक्स एंड एआई पावर्ड सर्वेलेंस जो है वो प्राइवेसी कंसर्न कर रहा है, ठीक है ना, तो आप उसको मेंशन कर सकते हो। अभी इन्होंने एग्जांपल में इसमें इन्होंने वैल्यू एडिशन किया, आधार डेटा लीक, बहुत अच्छा है, इसमें थोड़ा सा और टीथ देना है इस एग्जाम्पल में, तो वहाँ पर लिख देते हैं आधार डेटा लीक अफेक्टिंग 80 करोड़ इंडियंस, कोई इसमें डाउट नहीं करेगा 80 करोड़ था कि 40 करोड़ था, ठीक है ना, ये चलेगा। सो आप थोड़ा सा ना डेटा फीड कर सकते हो, बस जेनरिक डेटा, ठीक है ना, आधार डेटा लीक अफेक्टिंग 80 करोड़ 50 करोड़ इंडियंस, ठीक है ना, बस किस तरह से अफेक्ट है ये नहीं बताया ना, तो आप कोई इसको फॉल्सीफाई नहीं कर सकता। मैंने बताया था ना, कुछ ऐसी चीज़ें भी आप वैल्यू एडिशन में डालते हो, आपका तो यार कितना फैक्ट रटे, यार हम कितना पढ़ाई करें, हमें तो समझ में नहीं आता है, कितना मेमोराइज करें। बहुत लोगों ने मेरे को ये भी पूछा कि इतने डेटा इतना फैक्ट्स कैसे रटे, यार ये तो मैन्युफैक्चर किया ना मैंने डेटा, मैंने लिखा अफेक्ट, किस लेवल का इफेक्ट हुआ, क्या उनका मॉनेटरी लॉस हो गया, उनका फाइनेंशियल इम्ब्रीच हो गया, बस अफेक्ट लिख दिया है, ये कितना ब्रॉड टर्म है, और फिर लिख दिया 50 करोड़, आराम से चल जाएगा। हो सकता है बहुत सीवियरली अफेक्ट किया हुआ 10 करोड़ को, और ऐसे ब्रॉडली 80 करोड़ को, मतलब चल जाएगा ना, मतलब ऐसे बीच के डालो, या 50 ज़्यादा एकदम लगेगा कि कुछ ज़्यादा ही राउंड ऑफ कर दिया हो, तो लिख दो 35 करोड़ पीपल, 65 करोड़ पीपल, मतलब सब चलेगा, नो बडी इज़ गोइंग टू रेज आईब्रो, ठीक है ना। ऐसे तरीके से है ना आप चीज़ों को है ना मतलब डाल सकते हो, ठीक है ना, जिसको आप बोल सकते हो, अगर हैक बोलना है तो हैक बोल दो, बट दिस इज़ हाउ थिंग्स वर्क, तो इसमें आप वो एंगल डाल सकते हो। तो अभी हमने देखा कि एक तो हमने डिफ्यूज अकाउंटेबिलिटी वाली बात की, वो तो अलग से है पॉइंट में, सबसे पहले एल्गोरिथमिक बायस की बात की, डिस्क्रिमिनेशन की बात की, क्योंकि उनके सिस्टम में सिस्टम एम्बेडेड प्रेसिड्यूस्ड होता है, ठीक है ना, एक्सप्लेन नहीं करना है उसको। फिर प्राइवेसी वायलेशन और सर्वेलेंस रिस्क की बात की हमने, ठीक है ना। फिर और क्या पॉइंट्स हो सकते हो, सबसे इंपॉर्टेंट जो कीवर्ड है एआई से रिलेटेड, द ब्लैक बॉक्स प्रॉब्लम, ठीक है ना, ओपेक होता है एआई सिस्टम, ठीक है ना। सो इसमें है ना आप ट्रांसपेरेंसी ये सब नहीं लिखोगे, आप लिखोगे एकदम कीवर्ड जो एआई से रिलेटेड है, जिनको नोट में लिखना है वो नोट में अभी डाल लो, द ब्लैक बॉक्स प्रॉब्लम, द ब्लैक बॉक्स प्रॉब्लम, ठीक है ना, ये है रिलेटेड टू एआई, ठीक है ना, ये एक प्रॉब्लम है। अब इसको ऐसा नहीं है कि इसको एक्सप्लेन करने लग गया, एग्जामिनर इतना समझ जाएगा ना, अच्छा ब्लैक बॉक्स प्रॉब्लम वाली बात की है, ठीक है ना, और ये कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है, उससे रिलेटेड है, ठीक है ना। तो अगर उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है तो ब्लैक बॉक्स प्रॉब्लम इन एआई, उसको अंडरलाइन करना है, अच्छी बात लिखे हो, अंडरलाइन करना है, और उसका लिख के ब्लैक बॉक्स प्रॉब्लम इन एआई करके, और उसका लिखना है कि मतलब इवन द डेवलपर डजंट नो हाउ द डिसीजंस आर मेड, ठीक है ना। सो लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है, तो लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी लिखोगे तो उतना मज़ा नहीं आएगा, फिर वो लगेगा जेनरिक पॉइंट हो गया। तो द ब्लैक बॉक्स प्रॉब्लम ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई सिस्टम वेयर इवन द डेवलपर्स आर नॉट अवेयर हाउ द डिसीजंस आर मेड, बस 2 लाइन हो गया, ख़त्म, एक पॉइंट है, मस्त पॉइंट है, ठीक है ना। एग्जाम्पल अगर कहीं ऐसा आपको पता है कि कहीं ऐसा हुआ है तो आप एग्जाम्पल में डाल सकते हो, ठीक है ना, कि ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है, जहाँ ऐसा हुआ है, कोई फॉरेन में ऐसा हुआ हो, ठीक है ना, कोई सिस्टम में ऐसा दिखाओ, तो एग्जाम्पल है ना। आप 5 पॉइंट लिख रहे हो तो किसी में एग्जाम्पल आपको याद हो तो उसका लिख सकते हो, ठीक है ना। फिर उसके बाद आ जाता है आपका ये आपको 3-4 पॉइंट आ गया, ठीक है ना। फिर आप और क्या लिख सकते हो, इसमें आप ब्रेनस्टॉर्म सोचते जाओ कि हम एल्गोरिथमिक बायस लिख लिए, ठीक है ना, हमने प्राइवेसी वायलेशन, प्राइवेसी कंसर्न और स्टेट सर्वेलेंस रिस्क बताया, ठीक है ना। फिर हमने ब्लैक बॉक्स प्रॉब्लम के बारे में बात किया, ठीक है ना। फिर हमने अब आप डिफ्यूज अकाउंटेबिलिटी वाली जो बात है उसको बता सकते हो कि जब कोई एआई ड्रिवन डिसीजंस आप रॉन्ग करते हो तो आपको पता नहीं होता ना, मतलब किसको अकाउंटेबल बनाओ, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो ये वाली बात जो मैंने स्टार्टिंग में से ही कीवर्ड को रिलेटेड डिस्कस की थी, डिफ्यूज्ड अकाउंटेबिलिटी व्हेन, अब देखो कितना कंसाइज एंड कितना ब्रीफ लिखा जाता है, डिफ्यूज्ड अकाउंटेबिलिटी व्हेन एआई ड्रिवन डिसीजंस गो रॉन्ग, ठीक है ना। वाई, बिकॉज यू डोंट नो हु टू मेक अकाउंटेबल, वेदर द डेवलपर, द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी,
ठीक है ना, और द टेक्नोलॉजी और द रेगुलेटर और द गवर्नमेंट इटसेल्फ, ठीक है ना। सो ये आप बोल सकते हो कि डिफ्यूज्ड अकाउंटेबिलिटी हो जाता है। सो ये एक पॉइंट हो गया जो बहुत अच्छा है। 4 पॉइंट आपने क्लासिक डाले जो एकदम स्पेसिफिक है इस टॉपिक से रिलेटेड। 5वां पॉइंट जो एकदम घिसा पिटा जो सबको पता रहता है उसको आप अब डालना स्टार्ट कर सकते हो, जो कि कॉमन थोड़ा सा है, डिजिटल डिवाइड, जो कि पर रिलेवेंट है। डिजिटल डिवाइड एंड एक्सक्लूजन, ठीक है ना। डिजिटल डिवाइड होता है, एक्सक्लूजन होता है, ठीक है ना। क्यों होता है? क्योंकि 52% जो इंटरनेट पेनिट्रेशन है इंडिया का, यहाँ पर आप डेटा कोट कर रहे हो, 52% इंटरनेट पेनिट्रेशन, ठीक है ना, ये है इंडिया का, जिसके कारण डिजिटल डिवाइड है। तो आप ये डिजिटल डिवाइड हो जाएगा। अब ये सब जो है अब मैं बोल रहा हूँ ये ऐसे ऐसे पॉइंट हैं जो हर जगह इस्तेमाल हो जाएंगे, तो आप इसको ना नोट फॉर्म में भी डाल सकते हो। डिजिटल डिवाइड एंड डिजिटल एक्सक्लूजन, ठीक है ना, इसको आप लिख सकते हो कहीं भी, है ना, मतलब थोड़ा अच्छे से लिख दोगे, ठीक है ना, अच्छा लगता है देखने में कि डिजिटल डिवाइड एंड डिजिटल एक्सक्लूजन। और उसमें बस वही लिख सकते हो 52% इंटरनेट पेनिट्रेशन है, 60% एवरेज उसके कारण है, जिसके कारण बहुत लोग जो होंगे वो एक्सक्लूड हो जाएंगे, ठीक है ना। सो बस इतना लिख करके छोड़ सकते हो। फिर अगर और आपको जैसे मैं वैल्यू एडिशन के लिए दे रहा हूँ, ठीक है ना, 5 पॉइंट लिख दिए, काफ़ी है, या 6 लिखना है तो लिख सकते हो। मतलब कि एआई अगर अडॉप्शन करेंगे गवर्नमेंट में तो वो जॉब डिस्प्लेसमेंट होगा ना, मतलब इन द गवर्नेंस सेक्टर, ठीक है ना, लाइक जॉब लॉसेज इन, लाइक दैट इज़ द ह्यूमन कॉस्ट ना ऑफ ऑटोमेशन इन गवर्नेंस। सो दैट इज़ ऑल्सो एथिकल चैलेंजेस दैट रेजेस। सो यू कैन राइट इट कि ह्यूमन कॉस्ट ऑफ, अब देख रहे हो लैंग्वेज जो यूज़ हो रहा है, ह्यूमन कॉस्ट ऑफ ऑटोमेशन इन गवर्नेंस इनेबल्ड बाई एआई, ठीक है ना, इनेबल्ड गवर्नेंस इनेबल्ड बाई एआई, ठीक है। सो ये जो होगा ह्यूमन कॉस्ट ऑफ, और इसका लिख दोगे जॉब लॉस, एग्जांपल जॉब लॉसेज इन पीएसयू, ऐसे करके कर दिए। और फिर अगर आपको कुछ करना है तो आप लिख सकते हो नैस्कॉम ने ये बोला वो बोला, ठीक है ना, जॉब लॉसेस के बारे में ऐसे ही कि 1 मिलियन लॉसेस। देख रहे हो आप कैसे बीच की जो चीज़ें फेंकी जाती है, ठीक है ना, इसको मतलब हैक ही बोलेंगे, ठीक है ना, कि कैसे आप है ना थोड़ा सा कुछ लिख करके छोड़ सकते हो, ठीक है। सो ये हो गया, प्लस और भी ऐड करना है मैं जस्ट फॉर वैल्यू एडिशन, क्योंकि 6 पॉइंट एनफ है, पर वैल्यू एडिशन के लिए मैं बोल रहा हूँ, जो कि अगर इसमें तो मैंने आपको 4 पॉइंट नीचे बता दिए, पर कुछ घिसे पीटे पॉइंट रेडी होने चाहिए, जो कि दोज पॉइंट शुड बी टेलर मेड, दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू ना, लाइक टेम्पलेट। Initially I told कि if you give me a question on any topic, that this topic I know 4 points which is very like expertise oriented, it was very tailor made to the topic that is being asked, but at the same time you should always have 3-4 points ready, that is a very घिसा पिटा point that will work in every question, ठीक है ना। जैसे डिजिटल डिवाइड, डिजिटल एक्सक्लूजन मैंने बोला, ऑटोमेशन वाली बात बोली, कहीं टेक्नोलॉजी आता है, यू कैन टॉक अबाउट दैट, ह्यूमन कॉस्ट ऑफ ऑटोमेशन, इट शुड बी इन ऑन योर फिंगर टिप्स, उसको आप लिख के रख लो, ठीक है ना। वर्कफोर्स में डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा बिकॉज ओइंग टू द स्किल गैप्स, ठीक है ना, ये कर सकते हो। फिर एक और घिसा पिटा जब भी ये टेक्नोलॉजी में आ जाए, गवर्नमेंट गवर्नेंस है तो मतलब साइबर थ्रेट लाइक वनरेबल होगा ना, फिशिंग अटैक्स, एवरीथिंग, ऑल द क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर विल बी वनरेबल, ठीक है ना। क्योंकि एआई ड्रिवन आप गवर्नेंस कर दोगे तो वो अगर कंप्रोमाइज़ होगी तो एडवर्सरियल अटैक्स जो होगा वो मैनिपुलेट करेगा। जैसे आई हैव रिटन कि वेपनाइजेशन ऑफ एआई फॉर पॉलिटिकल मैनिपुलेशन, मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन स्टार्ट हो जाएगा, लाइक प्रोपेगेंडा दे विल स्टार्ट अगेंस्ट गवर्नमेंट पॉलिसीज। सो all kind of thing, if you become too much dependent on this, then AI powered disinformation campaign भी start हो जाएगा, that can target democratic processes. You can quote example in United States how उसको यूज़ किया गया, like allegedly बोला गया रशिया ने किया है, ठीक है ना, kind of thing. So आप ये सब बात को कहीं भी कोट कर सकते हो। और मैं बताऊं जेनरिक पॉइंट घिसा पिटा जो कहीं भी लगा दोगे टिक जाता है, उसमें ये भी डाल सकते हो टेक्नोलॉजी का कि एआई सिस्टम जो होते हैं, स्पेशली एलएलएम मॉडल्स जो होते हैं, दे कंज्यूम इनॉर्मस अमाउंट्स ऑफ एनर्जी, लाइक ब्लॉकचेन के लिए भी होता है, ठीक है ना, दे कंज्यूम इनॉर्मस अमाउंट्स ऑफ एनर्जी। क्यों? क्योंकि बिग डेटा जो है, बिग डेटा में क्या होता है, मतलब डेटा सेंटर का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, ऑल दोज डेटा सर्वर्स एंड ऑल, इलेक्ट्रिसिटी यूसेस हो सकता है। फिर आप उसमें कुछ एग्जांपल ऐसे ही फेंक सकते हो कि लाइक दिस कंपनी हैज़ रिपोर्टेड 10% राइज इन डेटा सेंटर कंजम्पशन ऑफ एनर्जी, ठीक है ना, इन 2024 और तो कुछ भी 2022 ऐसे ही, बिकॉज ऑफ ओवर डिपेंडेंस ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड बिग डेटा एनालिटिक्स। तो आप क्योंकि क्यों होता है ऐसा? क्योंकि डेटा सेंटर को वाटर यूसेज बढ़ जाता है कूलिंग ऑफ करने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हो जाता है, ठीक है ना, कार्बन इमिशन बहुत होता है मॉडल को ट्रेनिंग करने में, इन्फ्रेंसेस करने में। सो एआई एल्गोरिदम जो है मतलब थोड़ा एनर्जी लेती है, ठीक है ना। सो ये कॉमन है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, जो पेस्टल अप्रोच बोलते हैं कि उनका कार्बन फुटप्रिंट हाई है एआई ड्रिवन सिस्टम, स्पेशली द लार्ज मॉडल्स। सो ये सब चीज़ें आप कोट कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये मैंने 4 आपको एक्स्ट्रा जेनरिक पॉइंट दिया। सो दिस इज अ सेशन फॉर ब्रेन स्टॉर्मिंग ऑल्सो, लाइक आई एम गिविंग यू हाउ टू टेक नोट। तो आप नोट में तो 8 पॉइंट लिख के रख लो, ठीक है ना, 4 पॉइंट 6 पॉइंट वहाँ लिखना, पर ऐसे नोट में तो आप 8 पॉइंट लिखो, ठीक है ना। फिर अब ये एक हो गया, गवर्नेंस वाला काम खत्म हो गया। अब हमें इथिकल चैलेंजेस ऑफ एआई एंड बिग डेटा एंड पब्लिक सर्विस डिलीवरी करना। अब पब्लिक सर्विस डिलीवरी में आप क्या करोगे? उसमें बोलोगे कि पहला जो सबसे ऊपर प्रोमिनेंट दिखता है कि जो ऑटोमेटेड डिसीजन मेकिंग होता है वेलफेयर सर्विसेज में, ठीक है ना, वो क्या होता है कि मतलब हु विल गेट द बेनिफिशरी। तो बेनिफिशरी जो होता है, लाइक टू डिटर्मिनेशन ऑफ द बेनिफिशरी ऑफ द वेलफेयर सर्विसेज, वो काफ़ी एरोनियस हो सकता है,
ठीक है ना, लाइक क्योंकि सिस्टम जो होता है उसमें जो भी बायसेस होते हैं या जो भी गलतियाँ होती हैं वो है ना बहुत ज़्यादा एम्पलीफाई हो जाता है। जैसे इंडिया में बोल सकते हो आधार बेस्ड वेलफेयर डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उसमें ऑथेंटिकेशन नहीं होगा जिनका आधार का, तो उनको बेनिफिशियरी नहीं मिलेगा, तो वो जेन्युइन बेनिफिशियरी उससे रह जाते हैं। ठीक है ना, दैट इज़ द थिंग कि ह्यूमन इंटरवेंशन चाहिए कुछ कुछ जगह पर। ठीक है ना, बिकॉज टेक्नोलॉजी इज़ नॉट फुल प्रूफ, बहुत जगह इंफ्रास्ट्रक्चर भी इशूज़ हैं। ठीक है ना, मतलब क्रिटिकल टेक्नोलॉजी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी गैप के कारण भी रह जाता है, बेनिफिशियरी नहीं रहेंगे। सो पब्लिक सर्विस डिलीवरी में क्या बोल दोगे कि ऑटोमेटेड डिसीजन मेकिंग इन वेलफेयर सर्विसेज कैन मेक इरोनियस डिसीजन विच विल डिसप्रोपोर्शनली अफेक्ट मार्जिनलाइज ग्रुप्स। ठीक है ना, एग्जाम्पल में मतलब कोई एग्जाम्पल ले सकते हो। ठीक है ना, कि उड़ीसा में कुछ हो गया, झारखंड में कुछ हो गया, लाइक सम एग्जांपल यू कैन गिव इट, लाइक मिडिल में हर जगह ये होते रहता है, स्टारवेशन डेथ हो गया, ये वो कुछ। ठीक है, फिर आप क्या करोगे इसमें पब्लिक सर्विस डिलीवरी में और क्या डाल सकते हो आप? किसी भी पब्लिक सर्विस है ना, तो किसी भी चीज़ को पकड़ लो, लाइक हेल्थ केयर को पकड़ लो। ठीक है ना, उसमें बोल दोगे कि हेल्थ केयर एजुकेशन कुछ भी पकड़ लो, आप लिख दोगे कि AI इन हेल्थ केयर एलोकेशन और AI इन एजुकेशन सिस्टम। उसमें फिर वही होगा कि अगर एल्गोरिदम पर आप डिपेंड होगा, मतलब आप AI छोड़ कर ना एल्गोरिदम को टारगेट करो कि अगर एल्गोरिदमिक सिस्टम कोई भी होगा तो वो हेल्थ केयर रिसोर्सेज को अगर आपने लगा दिया कि एल्गोरिदमिक सिस्टम इज़ गोइंग टू प्रायोरिटाइज हेल्थ केयर रिसोर्सेज, देन इट कैन हैव सम बायसेस। ठीक है ना, वो बायसेस होगा, वो बायस आपको दिख सकता है, चाहे जेंडर में दिख सकता है, एल्डरली के अगेंस्ट बायस हो सकता है, मार्जिनलाइज ग्रुप के अगेंस्ट हो सकता है। आप इसमें US का भी डाल सकते हो, वहाँ रेस के बेसिस पर होता है, ब्लैक एंड वाइट वाला एंगल जा सकता है। ठीक है ना, फिर कुछ डेमोग्राफिक को कर सकता है बायसेस। सो बायसेस यू कैन जस्ट राइट इट इन ए डिफरेंट वे कि दिस बायसेस कैन मतलब जनरेट हो सकता है अक्रॉस द डेमोग्राफी, जेंडर, कास्ट, इथनिसिटी। ठीक है ना, ऐसे करके एग्जांपल डाल सकते हो। सो लाइफ एंड डेथ कॉन्सिक्वेंसेज हो सकता है ये बायस्ड एल्गोरिथम के कारण। सो ये आप एजुकेशन पकड़ लो, हेल्थ केयर पकड़ लो। ठीक है ना, मतलब एजुकेशन डालोगे तो उसमें क्या अगर एग्जांपल डालोगे तो बोल दोगे कि जैसे हेल्थ केयर में तो मैंने इधर बता दिया है, एजुकेशन में आप क्या डाल दोगे? एजुकेशन अगर आप यूज़ करते हो एग्जाम्पल, तो वहाँ बता दोगे कि रूरल और अर्बन बैकग्राउंड में डिफरेंस क्रिएट हो सकता है। ठीक है ना, इंग्लिश स्पीकिंग नॉन इंग्लिश स्पीकिंग में हो सकता है, इंग्लिश वर्सेस नॉन इंग्लिश स्पीकिंग में आप वो चीज़ को अंतर कर सकते हो। ठीक है ना, सो ये सब चीज़ें से ख़राब होगा। जैसे इन्होंने यही बात बोला कि नॉन टेक सेवी पर्सन जो एल्डरली होगा तो वो नॉन इंक्लूसिव वेलफेयर सर्विसेज होगा, वो ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाएंगे। AI सर्विसेज जो होता है तो उसका रिड्रेशन नहीं हो जाता, फिर वही अकाउंटेबिलिटी वाली बात। बायसनेस, इन्होंने बायसनेस की बात की, जो AI मॉड्यूल जो होगा ट्रेनिंग वो बायस्ड होती है। ठीक है ना, जैसे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, इन्होंने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की बात की। ठीक है ना, सो ये सब आप डाल सकते हो। ये पॉलिसिंग में भी कहीं भी एल्गोरिदम से दिक्कत आ जाए, लॉ इन्फोर्समेंट में बोल सकते हो। ठीक है ना, कि ऐसा होगा कि आप फ्यूचर ऑफेंसेस प्रिडिक्ट करोगे, तो एक तरह से आप क्या कर रहे हो, कुछ कम्युनिटी को ही गेटराइजेशन कर रहे हो। लाइक उसमें एग्जांपल दे सकते हो, कोई भी US का कोई कंट्री, शिकागो हो गया, कहीं भी जो क्राइम, मिशिगन हो गया, कहीं भी क्राइम रेट, फ्लोरिडा हो गया जहाँ पर ब्लैक्स के अगेंस्ट होता है, तो एग्जांपल दे सकते हो इन फ्लोरिडा, इन शिकागो। उसमें बोला गया कि रेशियल मतलब प्रोफाइलिंग हो जाता है क्रिमिनल्स का, वाई बिकॉज ऑफ AI ड्रिवन जो चीज़ें होती हैं। ठीक है ना, सो किसी भी एंगल को आप बोल सकते हो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट सर्विस कोई कर रहे हो। ठीक है ना, अगर एल्गोरिदम से होने लगा जॉब सीकर का मैचिंग, ये सब तो उससे इशू हो सकते हैं। और फिर PDS सिस्टम, ये सारे एंगल में आप पब्लिक सर्विस का, जो भी पब्लिक सर्विस, हेल्थ केयर हो, एजुकेशन हो, वेलफेयर डिसीजन पर हो, ठीक है ना, सब में आप देख सकते हो कि एल्गोरिदम से क्या इशू आता है, उसको आप मेंशन कर सकते हो। ठीक है, फिर आ गया इथिकल फ्रेमवर्क टू नेविगेट दिस चैलेंजेस। ठीक है ना, अब क्या फ्रेमवर्क बनाना है, सबको बॉक्स में करना है, जैसे इन्होंने अंडरलाइन किया, आपको सब चीज़ को बॉक्स में करना है। ठीक है ना, ताकि दिखे कि हाँ अच्छा ये चीज़ को भी अच्छे से मतलब डील किया गया। ठीक है ना, मतलब प्रॉपरली अच्छे से, मतलब उनके आंखों में दिखना चाहिए। ठीक है, अब इथिकल फ्रेमवर्क क्या होगा रिस्पॉन्सिबल AI गवर्नेंस का, तो इन्होंने लिखा इन्फॉर्म कंसेंट होना चाहिए। ठीक है ना, मतलब डेटा प्रोटेक्शन आप इसमें कर सकते हो, GDPR जो है जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन यूरोपियन यूनियन का, उसको कोड कर सकते हो कैसे, दैट इज़ अ गुड इथिकल फ्रेमवर्क, जहाँ पर कंसल्ट किया जाता है आपसे, कंसेंट लिया जाता है आपसे डेटा कलेक्ट करने से पहले। उसी में ऐड भी कर सकते हो राइट टू एरेजर जो होना चाहिए, डेटा आपका कलेक्ट कर रहे हैं, ये भी ग्रीवांस रिलेशन मैकेनिज्म होना चाहिए, ह्यूमन शुड बी आंसरेबल टू AI डिसीजन। ठीक है, अब देखो ये जो इन्होंने लिखा, इसको ना आप थोड़ा सा ना अच्छे से लिखना पड़ेगा, ह्यूमन शुड बी आंसरेबल से नहीं लिखना पड़ेगा, क्लियर ह्यूमन डिमार्केशन ऑफ अकाउंटेबिलिटी इन AI ड्रिवन ग्रीवेंस। तो क्लियर ह्यूमन डिमार्केशन ऑफ अकाउंटेबिलिटी, थोड़ा सा ना स्पेसिफिक, जैसे मैंने लिखा एल्गोरिथमिक डिस्क्लोजर होना चाहिए इन मेजर पब्लिक डिसीजन मेकिंग। देख लो एक लाइन या 1.5 लाइन की चीज़ें हैं, बट इट इज़ वेरी क्रिस्प, इट इज़ वेरी ससेंट। ठीक है ना, एल्गोरिथमिक डिस्क्लोजर दैट इज़ द की वर्ड। ठीक है ना, यू राइट इट इन योर नोट, दिस इज़ द की वर्ड एल्गोरिथमिक डिस्क्लोजर इन मेजर पब्लिक डिसीजन मेकिंग। देन प्रिंसिपल बेस्ड फ्रेमवर्क, इसको आप कंक्लूजन में डाल सकते हो कि नीति आयोग AI फॉर ऑल स्ट्रैटेजी इज सर्व एज गुड एथिकल फ्रेमवर्क टू, मतलब आगे के लिए किक स्टार्ट करने के लिए, ताकि जो पूरा करना है। तो एक ये सब अच्छे पॉइंटर हो सकते हैं कंक्लूजन में डालने के लिए, जैसे मैंने बोला वैल्यू एडिशन करना है तो कुछ में कंक्लूजन में डालना है। सो इन्होंने भी ठीक ठाक लिखा है। इसमें और क्या डाल सकते हैं, इसमें डाल सकते हैं
प्रिंसिपल बेस्ड फ्रेमवर्क आप बनाओगे, ठीक है ना, तो प्रिंसिपल बेस्ड फ्रेमवर्क बनाओ तो कौन से प्रिंसिपल आप डालोगे, ठीक है ना। तो आप इस समय ना ऐसे लिखा करो, रुक जाओ मैं बताता हूँ, मतलब कॉपी में भी आप कैसे लिखा करो ये बताता हूँ। जैसे आप लिख दोगे पहला पॉइंट लिख दोगे प्रिंसिपल बेस्ड फ्रेमवर्क, ठीक है ना, बेस्ड फ्रेमवर्क ऐसे हो गया, ठीक है। अब ये जो हो जाएगा, अब इसमें ना ऐसे करके लिख दोगे ट्रांसपेरेंसी, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि एक ही पॉइंट के अंदर अलग अलग लिख रहे हो, एक ही के अंदर लिखोगे ताकि जितना ज़्यादा अकोमोडेट हो सके, फेयरनेस, ठीक है ना, ये सब प्रिंसिपल होना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी, ठीक है ना, ये चौथा क्या हो जाएगा, प्राइवेसी, पांचवा क्या हो जाएगा, ह्यूमन ओवरसाइट होना चाहिए, ठीक है ना, ह्यूमन ओवरसाइट, ठीक है ना, ये हो जाएगा, प्राइवेसी होना चाहिए। सो ये एक ही पॉइंट के अंदर डाल दिया, ठीक है ना, सारा, ताकि थोड़ा सा हुआ है। अब इसको आगे में क्या लिखने का होता है ना, कि ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए ताकि ब्लैक बॉक्स वाला जो प्रॉब्लम है वो सब ना हो, फेयरनेस होना चाहिए ताकि एल्गोरिथमिक डिस्क्रिमिनेशन ये सब खत्म हो, ठीक है ना। फिर अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए, मतलब क्लियर लाइन होना चाहिए कि गलत हो तो किसके पास जाए। ह्यूमन ओवरसाइट होना चाहिए ताकि थोड़ा जो एक्सक्लूजन एरर है वो सब कम हो सके, ठीक है ना। फिर ये प्राइवेसी होना चाहिए, जो उन्होंने बोला इन्फॉर्म्ड कंसेंट, ये सब होना चाहिए, ठीक है। सो अब ये सब करना है तो इसके और भी कर सकते हैं कि इथिकल फ्रेमवर्क में क्या करोगे आप, ये कर सकते हो कि बायस ऑडिट करो, ठीक है ना, पीरियोडिक बायस ऑडिट करके एक पॉइंट लिख सकते हो, पीरियोडिक बायस, ये सब कीवर्ड मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना, ब्रेनस्टॉर्मिंग का, आप इसको नोट में डालते रहो, एक एक वर्ड लिखते रहो, इसको जहाँ मन करेगा आप कर सकते हो, चिपका सकते हो। एल्गोरिदम का हर जगह प्रॉब्लम है, ये सब आप एसए में भी लिख सकते हो, इथिक्स में लिख सकते हो, GS3 में भी लिख सकते हो। एल्गोरिदमिक इम्पैक्ट असेसमेंट ये भी लिख सकते हो, ठीक है ना, कि एल्गोरिदम जो होता है उसका इम्पैक्ट जो है आपको देखना पड़ेगा। एक पब्लिक रजिस्टर मेंटेन कर सकते हो, ठीक है ना, ऑफ गवर्नमेंट AI सिस्टम, ऑफ गवर्नमेंट AI सिस्टम, ये भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप बोल सकते हो कि लास्ट में जब लिखना रहेगा तो लिख दोगे नीति आयोग AI फॉर ऑल अप्रोच, जो स्ट्रैटेजिक पेपर है वो इनकम्पासेस ऑल दोज इथिकल फ्रेमवर्क एंड इट इज़ अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट टू मेक, ये हो सकता है। और क्या कर सकते हो फ्रेमवर्क में, AI इथिक्स बोर्ड क्रिएट कर सकते हो, ठीक है ना, AI इथिक्स बोर्ड आप ऐसे कर सकते हो, फ्रेमवर्क करके एक गोला लिख दोगे फ्रेमवर्क्स, और फिर है ना यहाँ AI इथिक्स बोर्ड लिख दोगे, ठीक है ना। पीरियोडिक बायस, ये सब जितनी भी पॉइंट है ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, इसको है ना ऐसे 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 लिख सकते हो। मतलब क्या होगा, कम स्पेस में आप ज़्यादा लिख सकते हो। तो पैराग्राफ लिखना बंद करो, ठीक है ना, आप जितना ज़्यादा हो सके पॉइंट लिखना स्टार्ट करो। मतलब ये एक पॉइंट जो है पीरियोडिक बायस ऑडिट, ये एक पॉइंट है, इसको लिखो, पूरा कहानी मत लिखो पूरा उस चीज़ों का, ठीक है ना। एक रिस्क कुछ भी आप बना सकते हो, लैंग्वेज बनाना है, इसलिए तो मैं एक ब्रेनस्टॉर्म का तरीका बता रहा हूँ। आपको लैंग्वेज बनाना है ना, आप बना सकते हो पब्लिक कंसल्टेटिव मैकेनिज़्म बना सकते हो, जो कि AI मतलब पब्लिक कंसल्टेटिव मैकेनिज़्म ये बना सकते हो। किस चीज़ के लिए बनाओगे, कंसल्ट कर रहे हो ना, तो सिटीज़न इनपुट के लिए बनाओगे, फॉर सिटीज़न इनपुट ऑन, किस चीज़ के इनपुट कैसे भी चाहिए, AI डिप्लॉयमेंट, ठीक है ना। सो ये मैं जस्ट ब्रेन स्टॉर्म कर करके ना आपको पॉइंट दे रहा हूँ, जनरेट कर रहा हूँ, ठीक है ना। आप अगर कोऑर्डिनेट करना है AI गवर्नेंस का अक्रॉस सेक्टर तो इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी बना दोगे। तो इसको रटने की ज़रूरत थोड़ी ना है कि हम बस कहीं से रट रहे हैं इसको, ठीक है ना। आप याद कर सकते हो, मतलब बना सकते हो इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी, AI टीम्स, AI इथिक्स बोर्ड, पब्लिक कंसल्टे, कुछ किसी भी चीज़ में है ना, ये आप डाल दो पब्लिक कंसल्टेटिव मैकेनिज्म फॉर सिटीजन इनपुट। ये मदरहुड एंड एप्पल पाई वाली सिचुएशन है, हर चीज़ों में फिट होगी। पब्लिक कंसल्टेटिव मैकेनिज्म फॉर सिटीजन आउटपुट, ये हर जगह जाएगा, ठीक है, ये आप डाल सकते हो। अब और क्या डालोगे, रिस्क मैनेजमेंट का आप कुछ कर सकते हो कि रिस्क आइडेंटिफाई करो, ठीक है ना, इम्पैक्ट असेसमेंट वाला जो बता दिया, ठीक है ना, उसको कर सकते हो। रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क क्रिएट कर सकते हो, उसमें कोई एग्जांपल डाल सकते हो, लाइक यूरोपियन यूनियन काफ़ी का आगे रहता है तो उन्हीं का बोल दोगे कि EU AI रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क, वो सही है, मतलब ठीक है ना, ये कुछ गलत नहीं है, कुछ एकदम कंक्रीट चीज़ें नहीं है, ये फॉल्सीफाई नहीं होगी। तो ऐसे है ना, आपके पास फैक्ट ना रहे तो आप क्रिएट करोगे। दिस इज़ द हैक ऑफ जनरेटिंग पॉइंट्स, इवन वैल्यू एडिशन पॉइंट। हर चीज़ के पास आपके पास कंटेंट नहीं रहेगा, सो दिस इज़ द हैक यू आर गोइंग टू फाइंड। पब्लिक कंसल्टेटिव मैकेनिज्म, कंसल्ट कर रहे हैं तो फॉर सिटीजन इनपुट ऑन AI है, कल को कुछ भी रहे यहाँ पर वहाँ पर उसको फिट कर देना आप। पब्लिक रजिस्टर कुछ भी रहे, एल्गोरिथमिक इम्पैक्ट है तो कुछ भी यहाँ रहे, X इम्पैक्ट असेसमेंट कर देना, X इम्पैक्ट असेसमेंट, ठीक है ना, उसमें भी काम हो जाएगा, कोई भी चीज़ रहे ऐसे। सो आप सारी चीज़ें जो है उसके हिसाब से करोगे, ठीक है। तो आई थिंक ये एक आपका सही है। फिर और क्या इसमें डाल सकते हो, अब इसमें डाल सकते हो पार्टिसिपेटरी एंड इंक्लूसिव डिज़ाइन कर सकते हो, कि आप है ना डेमोक्रेटाइज कर दो। इथिकल फ्रेमवर्क बोल रहा है ना, जिससे अच्छा होगा, तो उसमें बोलोगे पार्टिसिपेटरी कर दे, इंक्लूसिव कर दे डिज़ाइन को, ठीक है ना। मतलब इसमें बोल दोगे कि पार्टिसिपेटरी एंड इंक्लूसिव डिज़ाइन,
ठीक है ना, एंड इंक्लूसिव डिज़ाइन। ठीक है, ये आप एक कर सकते हो पार्टिसिपेटरी एंड इंक्लूसिव डिज़ाइन। उसमें क्या होगा, स्टेक होल्डर कंसल्टेशन आप कर दोगे डिज़ाइन फेज़ में ही। देखोगे कि एआई जो डिज़ाइन हो रहा है उसका ही स्टेक होल्डर से कंसल्टेशन करोगे। उसमें क्या होगा, कम्युनिटी से रिव्यू कर दोगे, तो बोल दोगे कम्युनिटी रिव्यू बोर्ड बना दोगे। तो ऐसे कुछ भी कर सकते हो जो कि डेमोक्रेटाइज़ कर देगा एआई का डिप्लॉयमेंट। ठीक है ना, सो डैट इज़ अ गुड फ्रेमवर्क। डेमोक्रेटाइज एआई डेवलपमेंट हो गया, डिप्लॉयमेंट हो गया, या उनका डिज़ाइन हो गया। जो था ना कि सिस्टम में एम्बेडेड रेसिड्यूज़ की जो बात की थी ना, उसको आप हटाओगे। कैसे हटाओगे, ऐसे ही पार्टिसिपेटरी करोगे, सिटीजन का इनपुट लोगे। इससे क्या होगा, बेनिफिट क्या है, मैं जस्ट ब्रेनस्टॉर्म पर चला गया मैं, वो तो पॉइंट्स तो हो गया। ठीक है ना, इससे क्या होगा, वो ब्लाइंड स्पॉट जो होते हैं सिस्टम के डिज़ाइन में उसको काउंटर करोगे। ठीक है ना, सो दिस आर द थिंग्स दैट, और ये आप कहीं भी डाल सकते हो। तो अभी हमने देख लिया क्या क्या हमने देख लिया। हमने देखा कि स्टार्टिंग में तो हमने देखा कि प्रिंसिपल बेस्ड बनाओगे, प्रिंसिपल में हमने सारा पार्ट कवर किया। फिर हमने किया कि इंस्टीट्यूशन में कैसे बनाओगे, तो वो सब बताया, ये सब इंस्टीट्यूशन कर सकते हो। ठीक है ना, कुछ कुछ की जो है पीरियोडिक बायस, एल्गोरिथमिक इम्पैक्ट असेसमेंट, पब्लिक डिस्क्लोजर ऑफ एल्गोरिथमिक डिस्क्लोजर इन मेजर पब्लिक डिसीजन मेकिंग, ये सब तो नुआंस में हो गया। और कुछ कुछ जनरल हमने बताया जो आप किसी और भी टॉपिक पर इस्तेमाल कर सकते हो। फिर रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क देखा, फिर हमने पार्टिसिपेटरी और इंक्लूसिव डिज़ाइन कैसे करना उसका देखा। फिर फाइनल हर चीज़ में एक आएगा ही लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। सो लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या होगा, ठीक है ना। सो वो क्या करोगे, लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क उसमें करोगे कि क्लियर लाइबिलिटी रूल डालोगे, क्योंकि लीगल है ना। सो क्लियर लाइबिलिटी रूल्स डालोगे। ठीक है ना, कि अगर एआई से रिलेटेड डैमेज होगा, सो क्लियर, तो ये टर्म हो गया क्लियर लाइबिलिटी रूल्स, इसको आप लिख लो। ठीक है ना, डेटा प्रोटेक्शन का आप करोगे, सर्टिफिकेट एंड ऑडिट वाला जो बताया कि बायस ऑडिट का करोगे, इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म डालो। और उसमें आप डाल दोगे कि क्या जीडीपीआर डाल सकते हो, कोई एक कंट्री का अगर कुछ पता हो वो भी डाल सकते हो। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में क्या डालोगे, इंडिया में डेटा प्रोटेक्शन एक्ट आया है 2023 का, उसको डाल सकते हो। ठीक है ना, 2023 का एग्जाम्पल में एआई स्पेसिफिक रेगुलेशन की बात कर सकते हो। फिर वो मदरहुड अपर पाई वाला सिचुएशन जो आता है, घिसा पिटा पॉइंट, कैपेसिटी बिल्डिंग, जैसे इन्होंने भी शायद मेंशन किया होगा कैपेसिटी बिल्डिंग की बात। ठीक है ना, कहीं तो होता ही है कैपेसिटी बिल्डिंग की, तो वो बोल दोगे वही टेक्निकल ट्रेनिंग करना है, इथिकल एजुकेशन देना है। ठीक है ना, पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट करना है। ठीक है, सो वो इकोसिस्टम डेवलप करना, कैपेसिटी बिल्डिंग करना है, उसके एग्जांपल में डाल सकते हो। रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर यूथ, ये फेमस चल रहा है अभी। ठीक है ना, तो रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर यूथ। ठीक है, ये आ गया आपका, ये एक प्रोग्राम चल रहा है, इसको आप बोल सकते हो। ठीक है ना, तो ऐसे से बहुत सारे पॉइंट हैं जो आप मतलब कॉमन चीज़ें हैं डाल सकते हो। फिर एक दो घिसा पिटा पॉइंट, कंटिन्यूस मॉनिटरिंग होना चाहिए, इवैल्यूएशन होना चाहिए, परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग करते रहोगे, एल्गोरिथम का मेंटेनेंस करते रहोगे, ये सब कॉमन चीज़ें हैं, मतलब कहीं भी डाल सकते हो। ठीक है ना, कोई भी डिसीजन हो रहा है तो उसको एक्सप्लेनेटरी इंटरफेस आप जनरेट कर सकते हो, जिससे मतलब उसको एक्सप्लेन कर सके, राइट टू एक्सप्लेनेशन कर सकते हो एआई सिस्टम में, ताकि समझ में आए। ठीक है ना, सो यू कैन क्रिएट सर्टेन थिंग्स। वो इथिकल फ्रेमवर्क आपके लिए बोला जा रहा है, तो राउंड अबाउट आपकी थिंकिंग हो जाएगी। यू कैन क्रिएट, वो जो मेंटल बैरियर है उससे आप बाहर निकल जाओ, उसके बाद यू कैन क्रिएट मेनी थिंग्स। ठीक है ना, सो आप हमेशा मतलब इसी फ्रेमवर्क में करना, ब्रेन स्टॉर्मिंग ऐसे ही करना। ठीक है ना, और फिर लास्ट में कंक्लूजन लिख सकते हो कि एज इंडिया पोजिशन इट सेल्फ एज ग्लोबल एआई लीडर। ठीक है ना, इंडिया एआई मिशन ऐसे कर करके। सो वी नीड टू बैलेंस जो होते हैं, मतलब जो गवर्नेंस का है उसको इथिक्स के साथ। ठीक है ना, तो ये सब आप नॉर्मल बातें लिख सकते हो। और एक कंक्लूजन में क्या होगा, एक पावरफुल कंक्लूजन लिख दोगे जो मतलब थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक हो, ब्रॉड बेस्ड हो, तो आप लिख सकते हो इसमें कि क्या लिखोगे, द सोल्यूशन लाइज, मतलब कोई भी टेक्नोलॉजी वाला में लिख सकते हो, लाइज नॉट इन रिजेक्टिंग टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। ठीक है ना, सोल्यूशन लाइज नॉट इन रिजेक्टिंग टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बट इन shaping it through robust governance framework। ठीक है ना, द सोल्यूशन लाइज नॉट इन, ये भी आप लिख सकते हो, मैं अब लिखूंगा इसमें ज़्यादा टाइम लगता है। द सोल्यूशन लाइज नॉट इन रिजेक्टिंग टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बट इन शेपिंग इट थ्रू रोबस्ट गवर्नेंस फ्रेमवर्क, जो इसमें बोला है रोबस्ट इथिकल गवर्नेंस फ्रेमवर्क लिख देना, क्योंकि सवाल में वो है। डैट प्रायोरिटाइजेज, उसका अंडरलाइन करना, डैट प्रायोरिटाइजेज ह्यूमन डिग्निटी, ये है ना एकदम कॉमन थीम रहता है, कहीं भी चिपका दो। डैट प्रायोरिटाइजेज ह्यूमन डिग्निटी। ठीक है ना, ह्यूमन डिग्निटी, इक्विटी, ये सब कीवर्ड होते हैं जो हर जगह चिपकते हैं, एंड अकाउंटेबिलिटी। ठीक है ना, तो कोई भी गवर्नेंस जो फ्रेमवर्क होना चाहिए वो ह्यूमन डिग्निटी, इक्विटी एंड अकाउंटेबिलिटी, इसको होना चाहिए। तो आपने एक अच्छा सा ब्रॉड कहा, क्योंकि इसमें चैलेंजेस भी है, निगेटिव भी है,
और ऑप्टिमिस्टिक भी बोलना है। तो सोल्यूशन लाइज नॉट इन रिजेक्टिंग टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, मतलब एआई आएगा, बिग डेटा आएगा गवर्नेंस में, तो उसको रिजेक्ट नहीं करना है, बट इन शेपिंग इट थ्रू रोबस्ट गवर्नेंस फ्रेमवर्क दैट प्रायोरिटाइजेज ह्यूमन डिग्निटी, इक्विटी एंड अकाउंटेबिलिटी। ये हो गया आपका कंक्लूजन। तो आपने देखा कि कैसे मैंने बताया कि अगर ऐसे सवाल आएँ तो आपको कैसे देखना है, ठीक है ना, इस टाइप के सवाल को कैसे अलग अलग फ्रेमवर्क में लेके जाना है, और जहाँ जहाँ आपको वैल्यू एडिशन दिखे वैल्यू एडिशन आप डालते जाओ, जिसको जो याद आया जहाँ पढ़ाया, जैसे यू का आ गया, GDPRA आ गया, फिर जहाँ भी आपको कुछ भी दिखे, मतलब जो एग्जांपल सब्सटेंशिएट करने के लिए के दिखे, एआई से रिलेटेड मतलब यूरोपियन कंट्रीज़ में बहुत हुआ है तो उसको भी डाल सकते हो कि कैसे यूनेस्को का एआई एथिक्स रूल है, ठीक है ना, वो अच्छा है। एआई एग्रीमेंट बोल सकते हो इंटरनेशनल, कोई आपको याद हो, ठीक है ना, कि ये जैसे यूनेस्को का ग्लोबल एआई एथिक्स एग्रीमेंट है, ठीक है ना, तो वो ये बता रहा है कि कैसे इथिकल इंटरफेस यूज़ होना चाहिए। उसी तरह यूरोपियन यूनियन का, उसी तरह यूके का कुछ भी बेसिक तरीके का। तो ऐसे डाल करके आप क्या करोगे, आंसर को सब्सटेंशिएट करोगे। सो ये याद रहे, यही आपका कोर थीम है, ये टॉपिक है। सो आई होप कि इसमें ब्रेन स्टॉर्मिंग मैंने दिया, पॉइंट कैसे जनरेट करना है वो दिया, आपको कीवर्ड कैसे लिखना होता है वो दिया, आंसर स्ट्रक्चर कैसे करते हैं वो दिया। दिस वीडियो हैज़ बीन वेरी लॉन्ग बट इट इज़ इमेंसली बेनिफिशियल, ठीक है ना। यू हैव टू कीप रिविजिटिंग, नोट आप लो जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना। एंड दोज पीपल हु हैव नॉट एनरोल इनटू द मेंस टेस्ट सीरीज, एनरोल इट। क्यों? क्योंकि ऐसे आप इनरोल करोगे तो जो मैं फीडबैक देते जाऊँगा उससे आपको समझ में आता जाएगा कि अच्छा मुझे ऐसे करना। तो आपका ये क्वेश्चन के थ्रू ही मैंने ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चीज़ें समझा दी। अब आपको ये भी पता चल गया कि जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ना है तो आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ना क्या है, ठीक है ना, बिग डेटा पढ़ना। अभी मैंने जो ये पॉइंट बताया तो यही मैं बोलने की कोशिश कर रहा था स्टार्टिंग से ही, कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको डिफिशिएंसी समझ में आएगी कि अच्छा मुझे इसकी ज़रूरत है, अच्छा मुझे इतना पढ़ना है, अच्छा आप मुझे है ना मतलब की पॉइंट ये पढ़ना है। पर अगर ऐसे आप पढ़ रहे हो तो कभी भी आप इस एंगल से देखते ही नहीं हो जिस एंगल से मैंने, क्योंकि उसमें फ्रेमवर्क बनाना रहता है ना, तो मैंने आपको फ्रेमवर्क में बताया कि कैसे आप लिखोगे, कीवर्ड कैसे बनाओगे, ये पब्लिक कंसल्टेटिव मैकेनिज्म ऐसे कैसे होगा। तो ये नोट क्या बनाओगे ये भी आपको नहीं पता चलता है। सो अभी आपको नोट कैसे बनाना है ये भी पता चल रहा है, ठीक है ना। नहीं मैं आगे भी बहुत सारे सेशन लेते रहूँगा, नेक्स्ट एसए का मास्टर क्लास होने जा रहा है, ठीक है ना। सो उसमें भी आपको समझ में आएगा कि अच्छा ऐसे करते हैं, ठीक है ना, ऐसे ऐसे की पॉइंट बनाते हैं, ऐसे ऐसे नोट बनाते हैं। अब जब आप ऐसे क्वेश्चन अटैम्प्ट करोगे और ऐसे से अप्रोच करोगे तो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसे पढ़ रहे होगा, आपको पता ही नहीं चल रहा होगा क्या पढ़ना है, क्या स्कैन करना है, क्या नोट में डालना है, क्या रिवाइज करना है, और अभी आपको ज़्यादा डायरेक्टेड वे में हो गया। सो इफ़ यू राइट एनफ टेस्ट आपको है ना रीओरिएंटेशन मिलेगा, और ये पता चल गया तो आप बाकी चीज़ें भी उस तरह से पढ़ोगे। सो तो बाय द एंड ऑफ 20 टेस्ट जो मैंने दिया है पूरा ऑल राउंड, आपको मतलब सब कुछ क्लियर हो जाएगा। एंड आई हैव गिवन द फ्लेक्सिबिलिटी फॉर 2026 पीपल जो 2025 में नहीं दे रहे हैं, 2026 में उनका मेंस टारगेट हो रहा है। मतलब कुछ लोग तो जुलाई अगस्त में भी सबमिट करने का उन्होंने मतलब परमिशन लिया। मैंने बोला या यू कैन डू इट, ठीक है ना, बिकॉज इस टाइम पर मेरे को था कि एक बार मैं आपको कर दूँ सो डैट यू फाइनली सिक्योर अ सर्विस नेक्स्ट ईयर। सो आई हैव गिवन देम द फ्लेक्सिबिलिटी। सो यू कम एनरोल, राइट टेस्ट 2-3 टेस्ट लिखो, उससे जो चीज़ें मैं फीडबैक दूंगा उसको समझो, और फिर 2-3 में थोड़ा गैप लो और फिर फाइनल लिखो, ठीक है ना। अनटिल अनलेस यू डोंट राइट इट यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि पढ़ाई में क्या गैप है, रीडिंग में क्या गैप है, रिवाइजिंग में क्या गैप है, नोट मेकिंग में क्या गैप है। एंड विद इन 1-2 days, ठीक है ना, आई विल कम अप विथ 1-to-1 मेंटरशिप प्रोग्राम, ठीक है ना, वेयर आई एम गोइंग टू पिक वेरी फ्यू पीपल फॉर मेंटरिंग। अलग अलग लेवल पर होगा, लाइक सम ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होगा, ज़्यादा इंटेंस होगा, लाइक सम आई विल पिक ऑन लाइक 1 call 2 call a month, some on a weekly basis, some on 10 days basis, कुछ नोट मेकिंग से रिलेटेड, क्योंकि आई एम रिसीविंग डिफरेंट डिमांड फ्रॉम डिफरेंट पीपल। कुछ को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है लाइक विच रिसोर्सेज टू रीड, हाउ मच टू रीड, किस डेप्थ में पढ़ना है, लाइक दे नीड टारगेट्स, क्या टारगेट होना चाहिए उनका वीकली, मंथली, डेली ऑल्सो, टू मेक देम अकाउंटेबल टू अ सर्टेन रूटीन जो इंटीग्रेटेड हो प्री प्लस मेंस दोनों का। सो आई विल कम अप विथ दिस डिटेल प्लान ऑफ 1-to-1 मेंटरशिप। बहुत सारे लेयर्स में होंगे एंड there will be very few people because I have to personally give time to everyone, and like you have seen in everything that I do I am very detailed, ठीक है ना। like वो मेरे से ना हर चीज़ों को मैं बहुत ही like I unpack it, तो मैं कोई चीज़ को छोड़ता नहीं हूँ। so even on the calls it can get stressed 2 hours with few people, ठीक है ना। so I am going to keep the number very limited so that I can give it all। so वो mentorship प्रोग्राम होगा and then there will be some integrated pre plus mains target, वो एक प्लान बनाऊंगा जिसमें people can work according to that, और उसमें मैं आपको गाइड करते रहूँगा कि which are the sources, how you should go about it, because बहुत लोग हैं जिनको they have no idea, ठीक है ना। so they have reached to me through various ways, so I'm going to make it for them, and all those people who are talking about the PSIR thing, for them also I will be doing exclusively another plan। so stay tuned on this, enroll into the main test series because it is going to be the immensely beneficial वो होगा, and then stay updated on this CSM टेलीग्राम चैनल, ठीक है ना, जहाँ पर मैं एक्सक्लूसिवली
like I'm going to post for the mains related stuff. All those things you are going to know. And for any other query, I'm always available at my email, and those who have my personal Telegram ID, they can reach out to me, and that also I will be happy to help you out. So I hope you take the right lessons from this video. It has been very long. I have been very exhausted after it, but I hope that is worth it. And next time I will be coming with a essay video, ठीक है ना. There I am going to lay open everything, anything that is there related to the essay thing. एक ही वीडियो में सब कुछ खत्म, ठीक है ना. Don't have to watch 100 वीडियोज़, ठीक है ना, for that thing. और उसके बाद भी डाउट रहती ही हैं. So I will try to keep everything very crystal clear, give you a roadmap how to score the highest possible marks in essay. Hope you liked it. Thank you, and do like it, comment it, share it with your friends, like who is in dire need of it, so that it reaches to maximum number of people, so that I get motivated. Like if I'm putting so much energy and effort and time, I hope that it is benefiting a large number of people and is creating a community where people, मतलब सबसे जो efficient way होता है, they unlock that efficient path and they can chase their goals just like you are chasing yours. So do share it, do like it, and do comment it, and do let me know how you liked it. Your words of like praise means a lot. It gives me energy to make more of such videos.